So hey everyone, Arshika here from GrowSquare, and in this class we are going to work on connectors, which are one of the most important part of lexical resources. And जैसे कि आपको पता है, lexical resources are very important for CELPIP. Why is that so? Because if you want to score a very good CLB, it's really very important to work on the language and lexical resources, no matter whether these are connectors, vocabulary, phrases, idioms, and collocations, right? So this is why we are going to work on this. And other main thing is that how you are going to work on these connectors. So see, since these are so many, right? So it won't be possible practically for you to learn all of this at once, right? So what you need to do over here at this point is you can revise 5 to 10 connectors on everyday basis. You can try to make sentences related to your own life so that it can be easy for you to remember all this. Other main thing I want to tell you is that in the whole session, you don't need to write down even a single word because we are going to provide you the whole PDF of the lecture, right? So without any halt, let's start. All right, so let's start with the connectors. So first of all, जो very first type है उसमें we are going to cover connectors किसके sequence के, ठीक है? So I have tried my best कि मैं आपको बहुत easy तरीके से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं that how to use the connectors at several places, right? So very first type of ours is फोर सीक्वेंस। फोर सीक्वेंस देखिए अभी क्या होता है दैट वी आर डिस्कसिंग बेसिकली कि इसमें जो है सीक्वेंस के लिए हमें करना क्या है, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, राइट? सो ये सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास आते हैं लिंकिंग वर्ड्स। तो ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इसमें अगर आप देखेंगे सीक्वेंस दिखाने के लिए स्पेसिफिकली तो क्या क्या है। अभी सीक्वेंस क्या होता है कि बारी बारी चीजें, जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि सबसे पहले आप ऐसा करिए, उसके बाद ऐसा करिए, फिर उसके बाद ऐसा करिए, राइट? सो उसके लिए, राइट? सो फर्स्ट इज इनिशियली, यानी सबसे पहले, या फर्स्टली। यू कैन ऑल्सो से ऑन द इनिशियल बेसिस, राइट? सेकेंड इज फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है? उसके बाद। लेकिन जब आप फॉलोड बाय यूज कर रहे हैं ना, देन यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड। व्हाट इज दैट वन थिंग? दैट बाय के बाद यू नीड टू यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके? उसके बाद वी हैव देन, after that, afterwards. We are also having subsequently, in the next stage, in the subsequent stage thereafter, and then we have finally. Finally means at last. We can also call it lastly. तो देखिए initially मतलब सबसे पहले, finally, ultimately, lastly का मतलब अंत में। बाकी सभी का मतलब क्या है? इसके बाद। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? तो अभी जो है इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। So, right, what I have tried to do over here is, see, I have put the usage of all these connectors in the process of making tea. I hope आप सभी को टी बनाना आता होगा, चाय बनाना, right? So first of all, we could have also written initially or firstly, boil water in a kettle or on the stove. ठीक है, पहले पानी boil कर लीजिए. Next, you could have also written followed by placing a tea bag, or next place a tea bag or loose tea into the teapot or cup. Then, यानी ये क्या है? कनेक्टर है। देन पोर द हॉट वाटर ओवर द टी बैग और लूज टी, ठीक है? यानी कि सबसे पहले जो है पानी, बॉयल वाटर जो है केटल में ले लीजिए या फिर आप स्टोव पे रख दीजिए पानी गर्म होने के लिए, बॉयल होने के लिए। उसके बाद क्या करें आप? एक टी बैग या तो उसमें डिप कर दीजिए, डिप करने के लिए रख दीजिए, या फिर लूज टी डाल दीजिए उसमें। फिर उसके बाद पोर द हॉट वाटर ओवर द टी बैग और लूज टी, गर्म पानी डालिए उसमें। आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद क्या करिए? लेट द टी बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है? कुछ मिनट्स तक इसको बॉयल होने दीजिए। सब्सिक्वेंटली उसके बाद रिमूव द टी बैग और स्ट्रेन द लूज टी फ्रॉम द पोट, ठीक है? उसको या तो छान लीजिए अगर लूज डाली है, अगर आपने टी बैग डाला है देन उसको हटा दीजिए, ओके? स्ट्रेन मीन्स छन्ना। Next is, finally, add any desired ingredients such as milk, sugar or lemon and stir. सब कुछ मिक्स डालिए and stir यानी कि मिक्स कर लीजिए। उसके बाद at last, finally, lastly, ultimately, क्या करना है? Pour the tea into a cup and enjoy your beverage. Beverage क्या होती है? पीने की चीज, drink. ठीक है? So I hope with the help of this we have understood the connectors that are used for sequence, right? So अभी जो है
वन मोर थिंग, देखिए इसमें आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, राइट? वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द होल पीडीएफ। अभी जो है we are going to move towards the next sort. What is this? We are going to work on the connectors that are related for time and sequence. दो चीजों के साथ रिलेटेड होंगे, कैसे होंगे समझते हैं। तो देखिए फॉर टाइम एंड सीक्वेंस क्या क्या होगा एंड क्या क्या डिफरेंस आएगा यूजेज में, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है? तो देखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान। प्रायर टू, प्रायर टू का मतलब क्या होता है? पहले। स्ट्रेट अवे का मतलब क्या होता है? सीधा ही। इन द मीन टाइम मीन्स दौरान, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? एज सून एज, यानी जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट इज एज लॉन्ग एज, इसका मतलब क्या होता है? जब तक कि। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियसली, वी कैन से साथ ही। देन सब्सिक्वेंटली, उसके बाद। इवेंचुअली, इन द एंड, मीनवाइल, उस दौरान, ठीक है? तो अब जो है हम इसको एक एक कनेक्टर को, एक एक कंजंक्शन को we will try to understand with the help of examples so that things could be much more clear to us, right? So this is the very first one, and during, during का मतलब क्या होता है? दौरान, ठीक है? So क्या कह रहे हैं examples में? देखिए during the meeting we discussed the new project timeline. मीटिंग के दौरान हमने क्या डिस्कस करा? नए प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को डिस्कस करा हमने, ठीक है? नेक्स्ट, ड्यूरिंग हर वेकेशन शी विजिटेड सेवरल हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, उसने अपनी छुट्टियों के दौरान क्या करा? बहुत सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स को देखा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है? क्या होता है? तूफान के दौरान द पावर वेंट आउट फॉर सेवरल आवर्स, बिजली जो है, लाइट जो है, वो बहुत सारे घंटों के लिए चली गई थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट द क्राउड चीयर्ड एंथुसियास्टिकली, मतलब कि जो भीड़ थी वो बहुत चीयर अप कर रहे थे, बहुत उत्साह के साथ, राइट? What is the next one? During the experiment, we observed unexpected results. हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या देखा? Unexpected results, जो कि हमने उम्मीद भी नहीं रखी थी, राइट? So इसका मतलब क्या होता है? दौरान। अभी आपका काम क्या है? That you have to try to make sentences on these all, right? लाइक जितने भी आपको कनेक्टर्स मिलेंगे, आपको धीरे धीरे लाइक एवरीडे 5 10 जितने भी आप पिक कर सकते हैं, उठाइए एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस एंड ट्राई टू यूज देम इन योर राइटिंग पार्ट एज वेल, सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल टू यूज देम ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट, अभी देखिए व्हाट इज दिस? दिस इज प्रायर टू। प्रायर टू मतलब उससे पहले, ठीक है? सो फर्स्ट एग्जांपल इज प्रायर टू द प्रेजेंटेशन शी रिव्यूड ऑल द डेटा थॉरली, ठीक है? प्रेजेंटेशन से पहले उसने सारा डेटा जो है डीपली देखा। थॉरली मींस डीपली। नेक्स्ट, प्रायर टू मूविंग टू अ न्यू सिटी ही रिसर्च द लोकल स्कूल्स, ठीक है? यानी कि नई सिटी में मूव करने से पहले, रिलोकेट करने से पहले उसने क्या सर्च करा? लोकल स्कूल्स के बारे में सर्च करा। नेक्स्ट, prior to the launch, the team conducted several tests to ensure everything was working properly. यानी कि लॉन्च से पहले टीम ने क्या करा? बहुत सारे टेस्ट करे, ये चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, prior to signing the contract, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले they negotiated the terms carefully. negotiated का मतलब क्या होता है? कि उसमें जैसे उन्होंने डिस्कशन करा, ओके इसमें प्लस माइनसेस क्या हो सकते हैं। लेट्स सपोज समवन इज सेइंग कि ओके द टर्म्स विल बी दिस, दैट ऑल द एम्प्लॉयज हैव टू बी देयर इन द ऑफिस फ्रॉम 9 to 9। लेट्स सपोज उन्होंने कहा 9 to 8 या फिर 9 to 10, बढ़ा दीजिए, 1 घंटा कम कर दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, कुछ भी। सो दिस इज नेगोशिएशन, राइट? नेक्स्ट, कोई भी टर्म पे, बेसिकली नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज प्रायर टू हर परफॉर्मेंस शी प्रैक्टिस फॉर आवर्स एवरी डे, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले उसने घंटों तक हर रोज प्रैक्टिस कर, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे का मतलब क्या होता है? सीधा ही। सो एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रेट अवे शी रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद द प्लान, उसको सीधा ही क्या समझ में आ गया था कि हाँ जी प्लान के साथ कुछ ना कुछ गलत तो है। नेक्स्ट, स्ट्रेट अवे दे बिगिन वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट विदाउट एनी डिलेज, दैट मीन्स उन्होंने बिना कोई डिले डाले नए प्रोजेक्ट के ऊपर सीधा ही काम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, स्ट्रेट अवे ही नोटिस द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, उन्होंने सीधा ही दो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में डिफरेंस यानी फर्क समझना शुरू कर दिया, देख लिया, ठीक है? नेक्स्ट इज स्ट्रेट अवे द टीम इंप्लीमेंटेड द फीडबैक टू इंप्रूव द डिजाइन, ठीक है? टीम ने जो है फीडबैक, लेट्स सपोज टीम ने कुछ बनाया, किसी टीम ने, ठीक है? और फीडबैक मिला कि ओके अच्छा है बट ये थोड़ी थोड़ी सी खराबी है। लेट्स सपोज फोन बनाया तो बाकी तो सब अच्छा है लेकिन कभी कभी हैंग हो जाता है, तो टीम ने क्या करा? फीडबैक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट,
स्ट्रेट अवे द डॉक्टर स्टार्टेड द ट्रीटमेंट टू एड्रेस द सिम्टम्स, यानी कि सीधा ही डॉक्टर ने सिम्टम्स को एड्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखिए हम जो है इसकी इतने इतने एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं हर सेंटेंस की, है ना। अभी एक दो एग्जांपल्स भी तो दे सकते थे, उससे भी तो आपको समझ में आ सकता था। नाउ व्हाई वी आर वर्किंग दिस मच इज that because we want you to be perfect in the usage, right? जितनी ज्यादा situations देंगे उतना ज्यादा better understand कर पाएंगे। अभी do remember your work, you also need to make sentences on each and every connector, okay? Next, so what is this? In the meantime, यानी उस दौरान, let's see, in the meantime please feel free to review the attached documents, यानी कि बीच में जो समय होगा उसमें आप जो है डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लीजिए। नेक्स्ट, in the meantime I'll be working on the प्रिलिमिनरी एनालिसिस, यानी कि उस समय के दौरान प्रिलिमिनरी यानी कि सबसे पहले वाले एनालिसिस पे काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट, इन द मीन टाइम वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द मटेरियल्स फॉर द प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स इसमें हम क्या कर सकते हैं मीन टाइम, लेट्स सपोज बॉस ने बोला ओके कि अभी हमें प्रेजेंटेशन देनी है, अभी 2 घंटे पड़े हैं, 2 घंटे में जो है आप क्या कर सकते हैं मीन टाइम, आप अपनी जो भी प्रेपरेशन करनी है कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट, इन द मीन टाइम द टीम इज हैंडलिंग द इनिशियल ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग पता क्या होती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम ट्रबल को शूट करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, दैट इज ट्रबल शूटिंग, ओके। नेक्स्ट इज इन द मीन टाइम लेट्स मेक श्योर ऑल द नेसेसरी अप्रूवल्स आर इन द प्लेस। क्या श्योर करना है हमें कि सभी जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो प्लेस पे हैं, यानी सही जगह पर है, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। What was the next connector? So this is as soon as, जितना जल्दी हो सके। So let's see the examples. What are these? As soon as the weather improves, we will head out for the hike. ठीक है, जैसे ही weather improve होगा हम निकल जाएंगे hike के लिए, ठीक है। hike क्या होता है बेसिकली? ऊंचाई पे चढ़ना, ठीक है। Next, as soon as she finishes her work, she will join us for dinner. मतलब जैसे ही जितना जल्दी हो सके उसका काम खत्म होता है वो हमें ज्वाइन करेगी, किस बात के लिए? डिनर के लिए। नेक्स्ट, as soon as the project is completed we will review the results together, यानी कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हम रिजल्ट साथ में देखेंगे। नेक्स्ट, as soon as the package arrives I will send you a tracking update, ठीक है। जैसे ही पैकेज आएगा ना तो मैं आपको क्या सेंड कर दूंगी? ट्रैकिंग की अपडेट सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट, as soon as the meeting ends I'll call you to discuss the next steps, यानी कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं आपको कॉल करूंगी नेक्स्ट स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट चलते हैं अभी। एज लॉन्ग एज, व्हाट इज दिस, यानी कि जब तक की, ठीक है। सो समझते हैं सेंटेंस की हेल्प से अभी। एज लॉन्ग एज यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली द टास्क शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। जब तक कि आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करेंगे ना तो टास्क जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब आपको। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज इट डजंट रेन, यानी जब तक कि बारिश नहीं होती द आउटडोर इवेंट विल प्रोसीड एज प्लान। दैट मीन्स बाहर, आउटडोर दैट मीन्स जो छत के बिना ढकी हुई जगह पर नहीं है, ठीक है। आउटडोर में जो भी प्लान करा हुआ है वो बहुत अच्छे से स्मूथली इट विल वर्क। नेक्स्ट, as long as you are willing to help I'm sure we can finish the project on time, ठीक है। यानी जब तक कि आप हेल्प करने के लिए विलिंग है, इच्छुक है, आई एम श्योर हम जो प्रोजेक्ट है टाइम पे खत्म कर देंगे। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज द बजट अलाउज, यानी कि जैसे ही हमें बजट जब तक कि अलाउ करता है वी कैन कंसीडर अपग्रेडिंग द इक्विपमेंट, यानी कि हम सामान को बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, as long as everyone agrees on the terms we can finalize the contract today, right? So जैसे ही जब तक कि सारे लोग जो है अग्री कर जाते हैं टर्म्स पे हम फाइनलाइज कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को। अगले पे चलते हैं जी। सो क्या था? साइमल्टेनियसली, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियसली द टीम वर्कड ऑन मल्टीपल टास्क टू मीट द डेडलाइन, यानी कि एक काम दिया होगा उसको समय पे पूरा करने के लिए, दैट इज टू मीट द डेडलाइन। साइमल्टेनियसली एक साथ टीम बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रही थी, तो व्हाट इज साइमल्टेनियसली? एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली द सॉफ्टवेयर अपडेटेड इटसेल्फ व्हाइल द यूजर कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है। तो कहते हैं एक तरफ जो है यूजर काम कर रहा था लेकिन साथ साथ सॉफ्टवेयर क्या हो रहा था? अपडेट हो रहा था। नेक्स्ट, simultaneously the orchestra played the music while the dancers performed on stage, that means एक तरफ क्या हो रहा था? एक समय पे दो चीजें हो रही थी। क्या हो रहा था? एक तरफ ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक चल रहा था वहां पे और डांसर्स क्या कर रही थी? परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे। नेक्स्ट,
Simultaneously, he answered emails and prepared for the upcoming meeting. That means साथ साथ उसने क्या करा, emails को भी आंसर कर दिया and upcoming meeting की भी क्या कर ली, तैयारी कर ली. Next, simultaneously, the chef cooked the main course while the sous chef prepared the appetizers. That means जब starters prepare कर रहे थे उसके साथ साथ main course भी prepare कर लिया. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, एक साथ ही. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो दिस इज सब्सिक्वेंटली. सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है जैसे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, जैसे हम करे थे आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स, देयरफॉर, जैसे हमने इनिशियली करा था ना, just like that. Okay, so subsequently the company implemented the new policy across the departments. That means उसके बाद ही कंपनी ने क्या करा, जो भी पॉलिसी थी उनकी, उनको सारे डिपार्टमेंट्स में implement कर दिया. Next, subsequently the research team published their findings in a leading journal. Okay, तो subsequently यानी कि इसके बाद ही जो रिसर्च टीम थी उन्होंने क्या करा, पब्लिश कर दिया फाइंडिंग्स को, किसमें करा, इन अ लीडिंग जर्नल. ठीक है. Next, subsequently, he received a promotion after successfully completing the project. Yes, मतलब प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उसको क्या मिल गया, साथ के साथ प्रमोशन मिल गया. Next, subsequently, the new software version was released to address the bugs. That means bugs को address करने के लिए, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करा गया, न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज कर दिया गया. नेक्स्ट, subsequently, the town organized a festival to celebrate the community's achievements. That means community ने कुछ अचीव करा होगा, तो उसके बाद क्या करा, टाउन ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दिया. एक और चीज यहाँ पे जो एड्रेस यूज हुआ है ना, ये घर वाला एड्रेस नहीं है. व्हाट इज दिस, टू एड्रेस द बग्स. दैट मीन्स किसी चीज को सॉल्व करने की बात करी जा रही है. लेट्स मूव अहेड. इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, अंत में. ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. Eventually, the team achieved their goal after months of hard work. That means अंत में टीम ने अपने महीनों के हार्ड वर्क के बाद जो है अपना गोल अचीव कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट, इवेंचुअली शी फाउंड द परफेक्ट जॉब दैट मैच्ड हर स्किल्स एंड इंटरेस्ट. यानी कि अंत में उसको एक परफेक्ट जॉब मिल गई जो कि उसकी स्किल्स एंड इंटरेस्ट के साथ मैच भी करती थी. Next, eventually the weather cleared up, allowing us to continue our outdoor activities. ठीक है, तो क्या हुआ, अंत में वेदर जो है वो साफ हो गया, जिसकी वजह से क्या हम कर सकते थे, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते थे. नेक्स्ट, इवेंचुअली द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन स्केड्यूल डिस्पाइट द इनिशियल डिलेज. अब डिस्पाइट पता है क्या होता है, बावजूद. ठीक है, यानी कि इनिशियली उसमें बहुत सारे डिलेज हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है अंत में प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, eventually they reconciled and resolved their differences after a long discussion. अब reconcile पता है क्या होता है, मनाना. ठीक है, and resolve तो पता ही है, solve करना. तो उन्होंने अंत में क्या करा, मना लिया एक दूसरे को और रिजॉल्व कर लिया अपने डिफरेंसेस, यानी जो भी उनमें फर्क आ रहे थे लॉन्ग डिस्कशन के बाद. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट कनेक्टिव. सो दिस इज मीन वाइल. ठीक है, मीन वाइल क्या होता है, उसके दौरान. ठीक है, लेट्स सी. हमने पहले भी करा था ना, इन द मीन वाइल, सो लाइकवाइज, राइट. सो मीन वाइल द टेक्नीशियंस वर्कड ऑन फिक्सिंग द इक्विपमेंट इन द अदर रूम. दैट मीन्स उस दौरान टेक्निक लाइक कोई समय था, उसके दौरान क्या करे थे टेक्नीशियंस, जो है फिक्स करे थे इक्विपमेंट को. मान लीजिए कुछ खराब हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि उसको फिक्स करना. ठीक है. नेक्स्ट, meanwhile the children played outside while their parents prepared dinner. यानी कि उस दौरान क्या कर रहे थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे जब उनके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, डिनर प्रिपेयर कर रहे थे. राइट. नेक्स्ट, meanwhile she reviewed the reports to ensure everything was in order. राइट. सो meanwhile दैट मीन्स मान लीजिए कोई पहले मीटिंग हुई बॉस के साथ. ठीक है, एंड बाद में जो है क्या हुआ, उसको बॉस ने बोला कि 1 घंटे के बाद आपकी मीटिंग है, तो इन बिटवीन के टाइम में उसने क्या करा, मीनवाइल क्या करा उसने, कि रिव्यू कर दिया सारी रिपोर्ट्स को कि हाँ जी सब कुछ ठीक था कि नहीं ठीक था. नेक्स्ट, meanwhile the council city council held a meeting to discuss the new regulations. That means city council ने क्या करा, मीटिंग रखी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस करने के लिए. लास्ट, meanwhile the team continued brainstorming ideas. brainstorming ideas पता क्या होता है, आइडियाज को सोचना अपने दिमाग में. For the next phase of the project, that means टीम ने क्या करा, नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज अपने दिमाग में सोचने शुरू कर दिए. ठीक है, सो इसी के साथ ही जो है हमने क्या कंप्लीट कर लिया, टाइम एंड सीक्वेंस के सारे कनेक्टर्स. Now we are going to start with the next connectors. What are these? और causes और reasons. यानी कि हम reasons बता रहे किसी चीज के लिए, उसके लिए we are using connectors.
Now let's see what is the list of the linking words. So these are because of, then we have because, since, as. क्या मतलब होता है? Like क्यों, किसकी वजह से. Then due to, owing to, for, on the account of, ठीक है, thanks, as a result of, so that, in order. सारे के सारे कैसे यूज होंगे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है. समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से. So let's see. So the very first one is because of. तो क्या कह रही है फर्स्ट में, द आउटडोर कॉन्सर्ट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन. दैट मीन्स जो आउटडोर कॉन्सर्ट था वो कैंसिल हो गया. क्यों करा? हैवी रेन की वजह से, बहुत भारी बारिश की वजह से. नेक्स्ट, शी स्टेड होम फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ अ बैड कोल्ड, यानी कि इसको कोल्ड हो चुका था बहुत बुरे तरीके से, तो उसने क्या करा, घर में रह गई वो. नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल इशू. ठीक है, ट्रेन क्यों डिले हुई, लेट क्यों हुई, क्योंकि टेक्निकल इशू आ गया था. नेक्स्ट, द इवेंट वाज अ सक्सेस बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन. इवेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्या रीजन है, किसकी वजह से, एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट, he received a scholarship because of his outstanding academic performance. Outstanding क्या होता है, बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण, पढ़ाई में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के कारण उसको क्या मिला, एक स्कॉलरशिप मिला. नेक्स्ट, द टीम लॉस्ट द गेम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस. लैक मतलब कमी. ठीक है, टीम ने जो है कमी, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए वो मैच जो है उन्होंने लॉस कर दिया. दैट मीन्स वो मैच को क्या कर गए, हार गए. राइट. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. व्हाट इज दिस बिकॉज. सेम ही तरीके से यूज होता है, देखिए नेक्स्ट का भी, बट थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज, वी डिडंट गो टू द बीच बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन. हम बीच पे क्यों नहीं गए, क्योंकि बारिश होने लगी थी. नेक्स्ट, शी couldn't अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी was फीलिंग अनवेल. अनवेल दैट मीन्स अच्छा नहीं महसूस करी थी, इसलिए जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई. नेक्स्ट, he passed the exam because he studied every day. उसने कैसे एग्जाम पास किया, क्योंकि उसने हर रोज पढ़ाई करी थी. नेक्स्ट, the project was completed on time because everyone worked overtime. प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट हुआ टाइम पे, क्योंकि हर बंदे ने ओवरटाइम काम करा. नेक्स्ट, I chose this book because I have heard great reviews about it. मैंने ये वाली बुक क्यों सिलेक्ट करी, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं. लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज यूजिंग सिंस. अभी सिंस भी क्यों यूज करते हैं, एक तो आप यूज करते हैं ना टाइम के लिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सीरीज में. बट यहाँ पे हम क्यों यूज करें, क्योंकि के लिए. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे यूज कर रहे हैं. वी स्टेड इनडोर्स सिंस इट वाज रेनिंग हैवीली. हम अंदर ही रहे, क्यों अंदर रहे, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी. नेक्स्ट, शी डिडंट गो टू वर्क सिंस शी वाज फीलिंग सिक. सिक को अभी और क्या सीखा था हमने, अनवेल, है ना. वो क्यों नहीं गई काम पे, क्योंकि वो उसको बीमार लग रहा था. नेक्स्ट, he was excused from the exam since he had a doctor's appointment. एग्जाम से उसको क्यों एक्सक्यूज मिला, ठीक है, क्योंकि उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी. नेक्स्ट, the project was delayed since the team faced unexpected challenges. प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ, क्योंकि टीम को क्या फेस करने पड़े, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, यानी जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी. नेक्स्ट, they missed their flight since they didn't leave early enough. उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी. अभी क्यों मिस करी, since यानी क्योंकि वो टाइम से जल्दी नहीं निकले थे, तो फ्लाइट तो मिस होनी ही थी. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. So in this we are going to learn the usage of as. Let's see. First example, we brought our umbrellas as it looked like it might rain. हम क्यों लेके आए अपना छाता, अपना अम्ब्रेला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है. नेक्स्ट, she went to bed early as she was feeling exhausted. That means उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी, बहुत टायर्डनेस महसूस हो रही थी, इसलिए वो जल्दी सोने चली गई. नेक्स्ट, he received a scholarship as he had excellent grades. उसको स्कॉलरशिप क्यों मिली, क्योंकि उसके ग्रेड्स यानी कि उसके मार्क्स, स्कोर्स जो है उसके बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट वन, द मीटिंग वॉज रीस्केड्यूल्ड. रीस्केड्यूल्ड का मतलब पता है क्या होता है. लेट्स सपोज मान लीजिए मैंने आपकी क्लास 8 बजे रखी एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं जी हमें तो सुटेबल नहीं है, तो हमने क्या डिस्कस करा, तो चलिए कोई बात नहीं 8:30 रख लेते हैं. तो दिस इज रीस्केड्यूल. ओके, so the meeting was rescheduled as the manager had an urgent commitment. क्योंकि urgent commitment थी उसकी, ठीक है, तो इसलिए reschedule हुई. Next, the event was cancelled, डबल एल आएगा यहाँ, as not enough people registered. ठीक है, इवेंट क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि enough यानी कि जितने लोग चाहिए थे उन्होंने रजिस्टर नहीं करा था. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज इट. सो दिस इज owing to. owing to का भी सेम ही मतलब होता है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं.
So very first one is the picnic was cancelled owing to the heavy rain. सेम एग्जांपल है, उसी में बार बार फिल करके दिखाया so that you can understand कि हाँ जी रिप्लेसमेंट्स है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है. नेक्स्ट, she couldn't attend the conference owing to a sudden illness. ठीक है, एकदम से वो बीमार हो गई तो इसलिए कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग वो अटेंड नहीं कर पाई. नेक्स्ट, the school was closed owing to a snowstorm. यानी कि बारिश का एक सॉरी बर्फ का एक तूफान आ गया तो इसलिए स्कूल क्या था, बंद हो गया. नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज rescheduled owing to the manager's unexpected absence. ठीक है, सेम जैसे पिछला सेंटेंस था ना, उसकी कमिटमेंट की वजह से, तो वैसे ही बस सेंटेंस है. नेक्स्ट, द फेस्टिवल वॉज पोस्टपोन, डिले कर दिया गया था. owing to, क्यों, किसकी वजह से, owing to safety concerns, राइट, सेफ्टी की वजह से. अभी नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द वर्ड, सो दिस इज फोर. अभी देखिए फोर का मतलब आप पता है कहाँ का यूज करते हैं, एक तो आप टाइम के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, ठीक है. एक होता है लिए के लिए यूज हो जाता है अदर जगह पे, है ना. अभी यहाँ पे हम कैसे यूज करें, क्योंकि के तौर पे यूज करें, कैसे करेंगे समझते हैं. सो आई टुक माई अम्ब्रेला फॉर इट लुक लाइक इट माइट रेन. ठीक है, मैंने अपनी अम्ब्रेला ले ली, क्यों, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो सकती है. नेक्स्ट, शी डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर शी वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड. ठीक है, उसने रेस्ट करने का सोचा, डिसाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि उसको बहुत थकान महसूस हो रही थी. नेक्स्ट, ही स्टेड अप लेट स्टार्टिंग, वो देर रात तक पढ़ता रहा था. 4, he had an important exam the next day. ठीक है, क्योंकि उसका important एग्जाम था अगले दिन. Next, the project was delayed for the team encountered unexpected challenges. Encountered मतलब सामना करना पड़ा टीम को unexpected challenges का, इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया. नेक्स्ट, द इवेंट वॉज अ सक्सेस फॉर मेनी पीपल अटेंडेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अटेंड करा इवेंट, तो इट वॉज अ सक्सेस, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं. So next connector is on the account of. Let's understand the usage. Very first example is the game was postponed on account of the heavy rain. Game क्यों postpone करी हमने, क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही थी. Because of लिख सकते थे, because लिख सकते थे, owing to, due to, ये भी लिख सकते थे, for लिख सकते थे. अभी क्या और क्या लिख सकते हैं, on account of. ठीक है. नेक्स्ट, she missed the event on account of a severe headache. ठीक है, बहुत बुरा हेडेक हो रहा था तो इसलिए उसको इवेंट जो है मिस करना पड़ा. नेक्स्ट, classes were cancelled on account of a power outage at the school. Classes क्यों cancel हुई, क्योंकि लाइट का कट लग गया था. Next, the meeting was delayed on account of technical difficulties with the video conference system. Meeting क्यों delay करी गई, क्योंकि technical difficulties आ रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, द कॉन्सर्ट वॉज रीस्केड्यूल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द लीड सिंगर्स इलनेस. ठीक है, कॉन्सर्ट जो है रीस्केड्यूल क्यों करा, क्योंकि एक लीड सिंगर था उसकी बीमारी की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. आसान है, हो जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. नेक्स्ट इज यूजिंग थैंक्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट वन इज द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल थैंक्स टू द रीसेंट रेन. ठीक है, यानी कि हम पता है क्या कर रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उसके लिए हम थैंक्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, कि गार्डन जो है बहुत सुंदर लग रहा है, क्यों लग रहा है, थैंक्स टू द रीसेंट रेन, उसकी वजह से, रीसेंट रेन की वजह से. नेक्स्ट, शी रिकवर्ड क्विकली थैंक्स टू द एक्सीलेंट केयर शी रिसीव. ठीक है, वो क्विकली क्यों रिकवर कर गई, क्योंकि उसको एक्सीलेंट केयर मिली थी. नेक्स्ट, he passed the exam with flying colors thanks to his hard work and dedication. ठीक है, उसने flying colors that means बहुत अच्छे नंबरों के साथ खुशी खुशी अपना एग्जाम जो है वो पास कर लिया. किसको थैंक्स, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, यानी जिसकी वजह से ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम थैंक्स टू द टीम्स कॉपरेशन. ठीक है, प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट हो गया था, तो किसको थैंक कर रहे हैं हम, किसकी वजह से हुआ, टीम की कॉपरेशन की वजह से. Next, the event was a huge success thanks to the efforts of the volunteers. Volunteers कौन होते हैं, जो पेमेंट नहीं लेते, जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं. ठीक है, इवेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि किसकी वजह से, सो थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द volunteers. Let's move ahead. So what is the next connector? So this is as result of. Let's understand the very first part, right? The match was cancelled as a result of the heavy snowstorm. Same sentences में बस लगाया हुआ है. He was absent from work as a result of the sudden illness. The school was closed as a result of the power outage. The project was delayed as a result of unexpected technical issues. The concert was postponed as a result of the lead singer's injury. ठीक है, तो सेम ही सेंटेंसेस है, एक दूसरे की जगह पे यू कैन यूज ऑल्टरनेटिव्स ही हैं एक दूसरे के. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं.
सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? दिस इज सो दैट, ठीक है। सो क्या एग्जांपल है? फर्स्ट, शी स्टडीड लेट इनटू द नाइट सो दैट शी कुड पास द एग्जाम विद अ हाई स्कोर, ठीक है। उसने देर रात तक पढ़ाई करी। अब क्यों करी पढ़ाई इतनी देर तक? ताकि वो जो एग्जाम है, जो उसका पेपर है, उसको बड़े अच्छे नंबरों से पास कर सके। नेक्स्ट, we provided additional training so that the employees could handle the new software more effectively, ठीक है। हमने एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी। अब क्यों दी? ताकि जो एम्प्लॉयज है ना, वो नए सॉफ्टवेयर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। नेक्स्ट वन, ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट सो दैट ही कैन मैनेज हिज डायबिटीज बेटर, ठीक है। क्यों फॉलो करते हैं डाइट को? ताकि डायबिटीज को मैनेज कर पाए। नेक्स्ट वन, द मीटिंग वाज स्केड्यूल्ड अर्ली सो दैट एवरीवन कुड अटेंड बिफोर द अदर कमिटमेंट्स, ठीक है। मीटिंग जो है जल्दी रख ली गई ताकि बाकी कामों से पहले सभी क्या कर ले? इसको अटेंड कर ले, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? दिस इज इन ऑर्डर टू। एंड लास्ट वन है कॉजेज एंड रीजंस का, ठीक है। और रीजंस का, क्योंकि एक दूसरे के सिनोनिम्स ही होते हैं ना। रीजंस मतलब कारण, उसको ही हम कॉजेज कह देते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट एग्जांपल किसका? इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब भी क्या होता है? किसके लिए, ठीक है। सो शी अटेंडेड एक्स्ट्रा क्लासेस इन ऑर्डर टू इंप्रूव हर ग्रेड्स। उसने एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करी। क्यों करी अभी तक? क्योंकि उसको अपने ग्रेड्स, अब ग्रेड्स क्या होता है? नंबर्स, स्कोर्स बढ़ाने थे, इसलिए करी। नेक्स्ट, he exercises regularly in order to stay fit and healthy, ठीक है। यानी कि उसने एवरीडे एक्सरसाइज करी। क्यों करी? ताकि वो फिट एंड हेल्दी रह सके। नेक्स्ट, they arrived early in order to get good seats at the concert, ठीक है। वो जल्दी आ गए ताकि उनको अच्छी अच्छी सीट्स मिल जाए कॉन्सर्ट पे, यानी कि लाइव सिंगिंग प्रोग्राम को कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, she packed her bags in order to prepare for the trip, क्यों पैक करे बैग्स? ताकि वो ट्रिप के लिए रेडी हो सके। नेक्स्ट, they saved money in order to buy a new car, क्यों पैसे बचाए उन्होंने? ताकि वो एक नई कार ले सके, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हमारे रीजंस वाले कनेक्टर्स खत्म होते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। इसमें कौन से कनेक्टर्स कवर करेंगे? टू शो इफेक्ट्स एंड कॉजेस, ठीक है। अभी साथ साथ चलेंगे तो समझते हैं कैसे कैसे रहेगा ये सारा। ऑल राइट, सो व्हाट आर दीज? अभी इफेक्ट्स क्यों समझेंगे कॉजेस के, ठीक है। सो फर्स्ट इज देयर फोर, दस, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, एज अ रिजल्ट, यानी कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, कि हम डिपेक्ट करेंगे। बट समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से वन बाय वन, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन इज देयर फोर। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। सो द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड अहेड ऑफ स्केड्यूल, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है अहेड ऑफ यानी कि पहले ही, टाइम से पहले ही खत्म हो गया। Therefore, the team received an early bonus. तो इसलिए टीम को क्या मिला? अर्ली बोनस मिला। Next, she had all the necessary qualifications for the job. Therefore, she was offered the position immediately. ठीक है, उसके पास जॉब के लिए सारी necessary qualifications यानी जो भी चाहिए था सब था, इसीलिए therefore यानी इसीलिए उसको जो है पोजीशन साथ के साथ मिल गई। नेक्स्ट, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड हैवी रेन। प्रिडिक्टेड मतलब उम्मीद करी, जताई है इस चीज की, इसलिए therefore the outdoor event was postponed, ठीक है। जो वेदर फोरकास्ट है उसने क्या प्रिडिक्ट करा है? हैवी रेन, तो इसलिए जो है आउटडोर इवेंट क्या हो गया? पोस्टपोन, यानी कि डिले कर दिया हमने। नेक्स्ट, द कंपनीज सेल्स हैव बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग। स्टेडीली मतलब एक रफ्तार से लगातार बढ़ती ही जा रही है। Therefore, they decided to expand their operations, इसलिए उन्होंने अपने expand their operation यानी कि काम बढ़ाने के बारे में सोचा, डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट, he didn't have the correct documentation, therefore उसके पास correct documents ही नहीं थे, तो therefore यानी कि इसलिए he was unable to complete the transaction, वो transaction complete नहीं कर पाया। ऑल राइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। सो नेक्स्ट वन इज 10, तो सेम ही है जी, सेम तरीके से यूजेज होती है, बट लेट्स give a look to the examples. So the very first one is the new system improved efficiency by 30%. Efficiency पता है क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता, ठीक है। कि जो न्यू सिस्टम है उसने इंप्रूव कर ली अपने काम करने की क्षमता, कितनी? 30%, 10। तो इसलिए इस तरह से द कंपनी वॉज एबल टू रिड्यूस कोस्ट सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ज्यादा कंपनी ने जो है कोस्ट यानी कि अपना खर्चा बहुत हद तक बचा लिया। नेक्स्ट, she studied hard for the exam and completed all the practice tests, thus she was confident of her success. उसने अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी और टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए, तो इस तरीके से जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट, द रोड्स वर आइसी एंड डेंजरस। रोड्स जो है डेंजरस यानी खतरनाक है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि आइसी है, बर्फ जमी पड़ी है उस पे। 10, तो इस तरह से द स्कूल डिसाइडेड टू क्लोज फॉर द डे, तो इसलिए स्कूल ने क्या डिसाइड करा? कि वो उस दिन के लिए स्कूल को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। नेक्स्ट, he forgot to set his alarm, ठीक है, वो भूल गया अपना अलार्म लगाना। 10,
मिसिंग द अर्ली मीटिंग, तो इसलिए यानी कि इस तरीके से उसकी अर्ली मीटिंग, जल्दी वाली मीटिंग मिस हो गई, नहीं अटेंड हो पाई। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट yielded consistent results, मतलब इसने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो है होने चाहिए थे, दस कंफर्मिंग द हाइपोथेसिस, तो इसलिए उन्होंने हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज हेंस, दैट मीन्स हम किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हैं, सेम ही है जैसे देयर फोर डज हेंस सेम, राइट। सो इस तरह से द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग फॉर मंथ्स, डिक्लाइनिंग पता क्या होता है, कम होना और बहुत ज्यादा कम होते जाना, ठीक है। कंपनी के प्रॉफिट जो है बहुत हद तक गिरते जा रहे हैं कई महीनों से, हेंस तो इसलिए द डिसीजन टू डाउनसाइज द वर्कफोर्स वॉज मेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना आप। डाउनसाइज यानी कि कम कर देना, अपसाइज बढ़ा देना, डाउनसाइज कम कर देना, यानी कि नुकसान हो रहा था उनको, प्रॉफिट कम होते जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि वर्कफोर्स यानी कि स्टाफ को कम कर देते हैं। नेक्स्ट, शी वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द जॉब, वो सबसे पढ़ी लिखी कैंडिडेट थी, सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट थी, हेंस हर प्रमोशन टू द मैनेजमेंट पोजीशन वाज डन, ठीक है, तो इसलिए उसका जो प्रमोशन है मैनेजमेंट पोजीशन के लिए डन कर दिया गया, ओके कर दिया गया। नेक्स्ट, द वेदर कंडीशंस वर वर्सनिंग, दैट मींस बहुत बेकार से बेकार होती जा रही थी, hence, तो इसलिए द कैंसलेशन ऑफ द आउटडोर इवेंट वाज डन, ठीक है, तो इसलिए जो है आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट, ही हैड कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायर्ड कोर्स वर्क, दैट मींस उसने अपना सारा का सारा कोर्स का काम जो है कंप्लीट कर लिया है, हेंस हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द प्रोग्राम, ठीक है, एंड उसने अपनी और क्या कर ली है, इस तरीके से ग्रेजुएशन भी कर ली है। नेक्स्ट, द टीम वाज अनेबल टू मीट द डेडलाइन मतलब सही समय पे काम खत्म नहीं हुआ उनसे, हेंस तो इस तरीके से या इसलिए द एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द क्लाइंट, तो क्लाइंट ने क्या करा, इसलिए उनको एक्सटेंशन दे दी कि जाओ भाई और टाइम ले लो लेकिन काम पूरा करके दो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट द वर्ड इज, व्हाट द कनेक्टर इज यूजिंग कॉन्सिक्वेंटली, तो कॉन्सिक्वेंटली भी क्या होता है, रिजल्ट ही होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, शी forgot to set her alarm and overslept, वो अपना अलार्म लगाना भूल गई, and overslept that means ज्यादा सोई रही, consequently she missed her morning meeting, तो इसलिए जो है उसने अपनी मॉर्निंग की मीटिंग क्या कर दी, मिस कर दी उसके रिजल्ट के तौर पे। नेक्स्ट, द कंपनी इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी, कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया, कॉन्सिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या निकला, इंप्रूविंग इट्स प्रोडक्शन एफिशिएंसी, अगर पैसा लगाया तो काम करने की क्षमता भी बढ़ गई। नेक्स्ट, द हैवी रेन कोज्ड फ्लडिंग इन सेवरल एरियाज, हैवी रेन की वजह से जो है फ्लड्स आ गए हैं, बाढ़ आ गई है, कॉन्सिक्वेंटली तो रिजल्ट क्या है, मेनी रोड्स वर क्लोज, बहुत सारी रोड्स जो है वो बंद थी। नेक्स्ट, फोर्थ वन, ही स्टडीड डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी फॉर द एग्जाम्स, कॉन्सिक्वेंटली तो रिजल्ट का क्या हुआ, ही अचीव्ड टॉप ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, उसको सारे सब्जेक्ट्स में क्या मिला, टॉप ग्रेड्स मिल गए। नेक्स्ट, द टीम फेल्ड टू मीट द डेडलाइन, कॉन्सिक्वेंटली डिलेइंग द प्रोजेक्ट्स लॉन्च, दैट मींस टीम ने जो है टाइम पे काम पूरा नहीं करा तो प्रोजेक्ट का लॉन्च क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं इसी के साथ ही, तो इन सभी का मतलब क्या है बेसिकली कि इसके रिजल्ट के तौर पे हम जस्ट एग्जांपल्स इसलिए देख रहे हैं सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उस चीज की बन जाए, ठीक है, लिस्ट आउट कर लेना आप इन सभी चीजों को। नेक्स्ट, यूजिंग अकॉर्डिंगली, अभी अकॉर्डिंगली क्या होता है देखिए समझिए एग्जाम्पल की हेल्प से। तो फर्स्ट वन इज द इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर, इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है बताया होता है ना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड द टीम एक्टेड अकॉर्डिंगली टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर थी, तो इसलिए टीम ने क्या करा, उसी तरीके से अकॉर्डिंगली यानी कि उसी तरीके से एक्ट करा ताकि वो जो काम है अपना टास्क को जो है काम को समय पे कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड स्ट्रॉन्ग विंड्स, प्रिडिक्टेड मतलब कि अंदाजा लगाया था उन्होंने, भविष्यवाणी करी थी कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी, सो वी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, तो हमने उसी तरीके से प्रिपेयर करा by securing all outdoor equipment, बाहर की सारी इक्विपमेंट को सिक्योर करके। नेक्स्ट, she reviewed the guidelines and made changes to the report accordingly, ठीक है, उसने क्या करा, गाइडलाइंस को रिव्यू करा यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको रिव्यू करा, एंड मेड चेंजेस, रिपोर्ट में चेंजेस कर दिए उसी हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंगली यानी उसी हिसाब से भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, द क्लाइंट्स फीडबैक वाज टेकन इनटू अकाउंट, टेकन इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में लेना, और क्या कह सकते हैं, टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड द डिजाइन वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, यानी कि उसी हिसाब से जो है उसके फीडबैक के हिसाब से डिजाइन को मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट, द बजट वाज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द न्यू एक्सपेंसेस, बजट को एडजस्ट कर लिया था नए खर्चों के हिसाब से, एंड द प्रोजेक्ट प्लान वाज अपडेटेड अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से प्रोजेक्ट के प्लान को भी अपडेट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्या है नेक्स्ट, यूजिंग एज अ रिजल्ट, दैट मीन्स रिजल्ट के तौर पे बिल्कुल सेम चीज है, बट फिर भी एग्जांपल्स जो है हम क्विकली रीड कर लेते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज शी वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स टू मीट द डेडलाइन, दैट मीन्स काम को समय पे पूरा करने के लिए उसने ज्यादा घंटे, एक्स्ट्रा घंटे काम करा. एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के तौर पे द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड अहेड ऑफ स्केड्यूल, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा घंटे काम करा तो टाइम से पहले ही जो है प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कंपनी ने जो है न्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो है इंप्लीमेंट कर दिए, लागू कर दिए एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट के तौर पे द नंबर ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ज्यादा डिक्रीज मतलब कम हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए हैं, तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं बहुत ज्यादा बड़ी दर पे, ठीक है. नेक्स्ट, ही निग्लेक्टेड हिज हेल्थ फॉर ईयर्स, उसने अपनी हेल्थ को इग्नोर करा, इन निग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट, तो उसका क्या रिजल्ट निकला, ही हैड टू अंडरगो अ मेजर मेडिकल प्रोसीजर, मतलब उसको मेजर मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, ठीक है. नेक्स्ट, द मार्केटिंग कैंपेन वाज हाईली सक्सेसफुल, ठीक है, ये जो मार्केटिंग कैंपेन थी वो बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हुई. एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या निकला, अब सक्सेसफुल होगी वो भी मार्केट की कैंपेन, तो सेल्स तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, तो सेल्स इंक्रीज बाय 20% इन जस्ट वन क्वार्टर, यानी कि चौथे हिस्से में, right? Next, the team conducted thorough research and analysis. As a result, they were able to identify the key market trends. ठीक है, टीम ने जो है बहुत ध्यान से रिसर्च भी करी एंड एनालिसिस, यानी कि ध्यान से देखा क्या है क्या नहीं है. तो रिजल्ट क्या निकला कि दे वर एबल टू आइडेंटिफाई की मार्केट ट्रेंड्स, उनको पता चल गया कि मार्केट ट्रेंड्स क्या क्या है और हमें कैसे कैसे काम करना है. तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. इसमें वी आर गोइंग टू लर्न कनेक्टर्स रिलेटेड टू बैकग्राउंड आइडियाज, ठीक है, कि कैसे कैसे उनको हम शो कर सकते हैं. सो लेट्स गिव अ लुक टू द लिस्ट ऑफ दिस. सो देखिए क्या क्या है इसमें. तो सबसे पहले इन द पास्ट यानी कि बीते समय के दौरान. नेक्स्ट इज अप टू द प्रेजेंट, दैट मीन्स कि अभी तक. नेक्स्ट हिस्टोरिकली या कस्टमैरिली यानी कि पुराने समय के हिसाब से, ठीक है. ओवर टाइम समय के साथ साथ, बिफोर लॉन्ग बहुत समय से पहले, फॉर्मरली पहले, ट्रेडिशनली पहले, रिसेंटली अभी अभी, इन अर्लियर हम कहेंगे कि पुराने समय में, ठीक है. मूव करते हैं एग्जाम्पल्स पे. लेट्स सी. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज यूजिंग इन द पास्ट, ठीक है, कैसे यूज करेंगे यानी कि बीते समय के दौरान. और क्या कह सकते हैं, पास्ट ईयर्स, यस्टर ईयर्स, यस्टरडे क्या होता है, बीता कल, तो यस्टर ईयर्स क्या होता है, बीते साल, ठीक है. वेरी फर्स्ट वन क्या कह रहे हैं, इन द पास्ट शी यूज्ड टू ट्रेवल फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार उसको ट्रेवल जो है वो करती थी, बट नाउ शी प्रेफर्स वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है. लेकिन अभी वो क्या प्रेफर करती है, घर से काम करना, यानी कि पहले तो वो लगातार ट्रैवल करती रहती थी, लेकिन अभी वो क्या चाहती है कि घर से काम दे दो भाई मुझे तो. नेक्स्ट, इन द पास्ट द कंपनी फोकस्ड प्राइमरीली, प्राइमरीली मतलब सबसे पहले, ऑन लोकल मार्केट्स, वेयर एज हालांकि, वेयर एज मतलब हालांकि, नाउ इट ऑपरेट्स ग्लोबली, ठीक है. पहले जो है कंपनी किस पे फोकस करती थी, लोकल मार्केट, यानी कि अपने शहर की मार्केट पे फोकस कर लेती थी, ऐसा समझ लीजिए. लेकिन अभी जो है ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड पे काम करना चाहती है, वर्ल्ड लेवल पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द पास्ट आवर फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, यानी कि पास्ट में बीते समय के दौरान हमारी जो फैमिली है वो किस में रहती थी, स्मॉल टाउन में रहती थी. बट वी मूव टू द सिटी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, हम सिटी में मूव हो गए, क्यों, अच्छे मौकों के लिए, मौके यानी अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट वन, इन द पास्ट ही स्ट्रगल्ड विद टाइम मैनेजमेंट, दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट उससे नहीं होती थी, बट ही हैज सिंस डेवलप्ड इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज. अभी सिंस का मतलब मैंने क्या बताया था, एक तो होता है क्योंकि के लिए, एक होता है तब से, है ना. तो तब से, लेकिन उसने क्या करा, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज यानी बढ़िया जो है स्ट्रैटेजीज प्लान्स बना लिए हैं. नेक्स्ट, इन द पास्ट दिस एरिया वाज नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि पास्ट में इस एरिया को कैसे जाना जाता था, उसकी एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी एक्टिविटीज की वजह से. बट इट हैज सिंस बिकम अ बजलिंग अर्बन सेंटर, यानी कि अभी ये जो है एक भरा भरा अर्बन सेंटर बन गया है, ठीक है जी. तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे. क्या था अगला, अप टू द प्रेजेंट, ठीक है, तो पढ़ते हैं एग्जांपल्स. वेरी फर्स्ट वन इज अप टू द प्रेजेंट शी हैज मेंटेन्ड एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड इन हर करियर, यानी कि अभी तक, अब यही कह देंगे ना, अप टू द प्रेजेंट यानी कि अभी तक तो उसने बहुत बढ़िया एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड जो है अपने करियर में बना के रखा है. नेक्स्ट एग्जांपल, अप टू द प्रेजेंट द प्रोजेक्ट हैज मेट ऑल इट्स माइलस्टोन्स विदाउट एनी मेजर डिलेज, दैट मीन्स अभी तक जो प्रोजेक्ट है उसने सारे माइलस्टोन्स जो भी उसको पूरा करना था वो कर लिया है और कोई भी खास डिले भी नहीं हुआ, ठीक है. नेक्स्ट, अप टू द प्रेजेंट
We have received positive feedback from all participants in the program. That means अभी तक तो हमारे जितने भी प्रोग्राम में मेंबर्स हैं उनसे फीडबैक कैसे मिली, हमें पॉजिटिव ही मिली है. नेक्स्ट इज अप टू द प्रेजेंट the team has been working diligently to resolve the issues reported last month. That means अभी तक जो है टीम diligently मतलब पूरी मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ लगी हुई है इश्यूज, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो कि पिछले महीने आई थी. नेक्स्ट, up to the present, the research findings have shown consistent results across various experiments. Consistent यानी कि लगातार हमारे रिजल्ट्स जो है बढ़िया आ रहे हैं अभी तक तो. ठीक है, तो ये था अभी तक तो. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज दिस? ऑलराइट, सो इट इज यूजिंग हिस्टोरिकली, यानी कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, यानी कि पुराने समय की बात कुछ ना कुछ होगी. तो लेट्स अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज हिस्टोरिकली दिस रीजन हैज बीन अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर सेंचुरीज. ठीक है, यानी कि पुराने समय से ही ये ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर चल रहा है. नेक्स्ट, historically the company has been known for its innovative का मतलब होता है क्रिएटिव अप्रोचेस टू टेक्नोलॉजी. ठीक है, यानी कि ये जो कंपनी है किसके लिए जानी जाती है? इनोवेटिव अप्रोचेस के लिए. Next one is historically this town or the town has faced numerous challenges but its resilience has always shown true. ठीक है, यानी कि बहुत challenges आए लेकिन फिर भी पूरा चमक रहा है, अच्छे से है. ठीक है, next, historically the decision is built to build the bridge was considered a major engineering achievement. यानी कि पहले जो है क्या समझते थे हम कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हमने क्या करा, ब्रिज बना लिया एक. नेक्स्ट चलिए जी. Historically, women's role in the workforce have evolved significantly over the past century. That means अगर हम पहले का देखेंगे ना तो historically यानी कि बीते समय के उसके हिसाब से जो है women का रोल जो है बड़ी अच्छी तरीके से सामने आया है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करते हैं. सो क्या है जी नेक्स्ट वर्ड हमारा? दिस इज यूजिंग कस्टमरली. तो वो भी वही होता है पुराने समय के हिसाब से या रीति रिवाज के हिसाब से. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज customarily the office closes early on Fridays to give employees a longer weekend. ठीक है, इसको हम और कैसे पता है यूज कर सकते हैं? यूजुअली के तौर पे भी यूज कर सकते हैं हम, यानी कि आमतौर पे जो है कस्टमरली, दैट मीन्स इसका मतलब तो यही हुआ कि हमेशा से, पिछले समय से ऐसे ही हो जाता है. ठीक है, तो कस्टमरली द ऑफिस क्लोजेस, दैट मीन्स आमतौर पे जो ऑफिस है इतने समय पे बंद हो जाता है. कस्टमरली दैट मीन्स जब से खुला है, कस्टम चला रहा है, वी कैन कंसीडर कि तब से ऐसा ही हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, customarily the bride wears a white dress at weddings in many cultures. ठीक है, customarily यानी कि रीति रिवाज के हिसाब से जो है या पुराने समय के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से ब्राइड जो है, जो दुल्हन है, वो व्हाइट ड्रेस पहनती है वेडिंग्स में, बहुत सारे कल्चर्स में. ठीक है, नेक्स्ट, customarily the team meets every Monday morning to discuss the week's goals. ठीक है, टीम जो है हर मंडे मॉर्निंग मिलती है. क्यों मिलती है? हमेशा से ही, यानी कि यूजुअल आमतौर पे यू कैन अंडरस्टैंड क्यों मिलती है. पूरे हफ्ते के गोल्स डिस्कस करने के लिए, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या एम्स हैं. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ बेसिकली, जैसे हम कहें कि इतने समय से ऐसा हो रहा है, जो आमतौर पे चीज होती है तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, customarily guests are offered refreshments upon arrival at social gatherings. ठीक है, यानी कि पहले से हम क्या करते हैं, यूजुअली आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई गेस्ट आता है तो उनको रिफ्रेशमेंट्स, खाने पीने को तो कुछ देते हैं ना सोशल गैदरिंग्स में. Next, customarily the company sends out thank you notes to clients after completing a project. That means क्या करा, यूजुअली क्या करती है कंपनी, थैंक यू नोट्स भेजती है अपने कस्टमर्स को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो व्हाट इज ओवर टाइम? तो ओवर टाइम का मतलब होता है, देखिए, समय के साथ साथ, और क्या क्या कह सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पासिंग टाइम. ठीक है, ये सभी वर्ड्स भी जो है हम यूज कर सकते हैं. लेट्स गिव अ लुक टू द एग्जांपल्स. So the very first one is over time the city has developed from a small village into a bustling metropolis. That means एक छोटे से विलेज से बहुत बड़ी सिटी, यानी कि भाग दौड़ भरी जिंदगी वाली मेट्रोपोलिस, यानी कि बहुत बड़े शहर में बदल चुकी है. नेक्स्ट इज over time, the painting's colors have faded, giving it a vintage appearance. That means paint के colors जो है वो fade हो गए हैं, तो इसको बेकार सी look दे दिया उन्होंने. ठीक है, next, over time उन्होंने, यानी कि colors निकल गए ना, इसलिए बेकार सा हो गया. Next, over time we have seen significant improvement. Significant यानी कि बहुत बड़े लेवल पे improvements हमने देखी हैं in our team's productivity. अपनी टीम की काम करने की क्षमता में improvements यानी कि बढ़िया हो गई. ठीक है, next, over time, the relationship between the two countries has strengthened considerably. That means समय के साथ साथ जो दो countries में relation है वो बहुत बढ़िया हो गई है. Next, over time, the initial cost of the investment will be offset by the long-term savings. That means initial cost कैसे offset होगी?
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जो है हम मूव करते हैं। So this is using before long. Example की हेल्प से समझाती हूँ. First is before long, the team had completed the project ahead of schedule. ठीक है, यानी कि बहुत लंबा समय बीतने से पहले, before long यानी लंबा समय बीतने से पहले ही टीम ने जो है अपना प्रोजेक्ट यानी कि समय से पहले ही कंप्लीट कर दिया. Next, before long, the rain stopped and the sun came out. We can also say जैसे ही, ठीक है, जैसे ही बारिश रुकी सूरज आ गया. Next, before long, she adjusted to her new role and became a valuable asset to the company. जैसे ही उसने अपने न्यू रोल में एडजस्ट कर लिया, वो कंपनी के लिए क्या बन गई? वैल्यूएबल एसेट बन गई, यानी कि बहुत संपत्ति, एसेट यानी कि बहुत बढ़िया चीज जिसको हम कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, बिफोर लॉन्ग दे रियलाइज दैट देयर स्मॉल इन्वेस्टमेंट हैड ग्रोन सिग्निफिकेंटली. यानी कि उनको कैसे क्या रियलाइज हुआ? ज्यादा लंबे समय से पहले ही कि हाँ जी, उनकी जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ हो चुकी, ठीक है. नेक्स्ट, बिफोर लॉन्ग द न्यू पॉलिसीज बिगिन टू शो पॉजिटिव रिजल्ट्स इन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. ठीक है, यानी कि ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ था, यानी कि जैसे ही जो है बिफोर लॉन्ग जो है न्यू पॉलिसीज ने क्या कर दिया, क्या शुरू कर दिया? पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए, ठीक है. तो क्या समझते हैं हम इसका मतलब बिफोर लॉन्ग का? यानी कि या तो एक नंबर वन, ज्यादा लंबा समय होने से पहले. सेकेंड, और क्या समझते हैं कि जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही ऐसा हो गया, यानी कि जैसे ही. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो दिस इज फॉर्मरली. ठीक है, तो फॉर्मरली क्या होता है? यानी कि इससे पहले. समझते हैं एग्जांपल्स. द बिल्डिंग फॉर्मरली अ टेक्सटाइल फैक्ट्री इज नाउ अ मॉडर्न आर्ट गैलरी. ठीक है, जो बिल्डिंग है वो पहले क्या थी? फॉर्मरली यानी कि पहले क्या थी? एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी, लेकिन अभी क्या है? मॉडर्न आर्ट गैलरी है. नेक्स्ट, she worked at the company formerly known as the Global Tech before joining her current firm. यानी कि पहले उसने जो है कौन सी कंपनी में काम, एक कंपनी में काम करा था जिसका नाम क्या है? फॉर्मरली, यानी कि पहले नाम क्या था? ग्लोबल टेक था, ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्मरली द पार्क वाज अ प्राइवेट एस्टेट बिफोर इट वाज ओपन्ड टू द पब्लिक. यानी कि पब्लिक के लिए ओपन होने से पहले पार्क क्या था? एक वी कैन से प्राइवेट किसी का था. नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट फॉर्मरली लोकेटेड ऑन द मेन स्ट्रीट. यानी कि पहले कहाँ था रेस्टोरेंट? फॉर्मरली यानी कि पहले क्या था? मेन स्ट्रीट पे था. हैज मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन डाउनटाउन. अभी क्या हो गया? डाउनटाउन में, यानी कि सेंटर ऑफ द सिटी में चला गया है. नेक्स्ट, formerly he was a professor at the university but now runs his own research institute. पहले क्या था? वो एक प्रोफेसर था, लेकिन अभी क्या करता है? वो अपना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको रन करता है. तो फॉर्मरली का मतलब क्या हुआ? पहले, ठीक है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. व्हाट इज दिस ट्रेडिशनली? लेट्स अंडरस्टैंड. तो देखिए, ट्रेडिशनली से भी हमें क्या समझ में आता है? यानी कि पहले से, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनली द फैमिली गेदर्स फॉर लार्ज डिनर ऑन थैंक्स गिविंग डे. यानी कि पहले क्या होता था कि फैमिलीज जो है बड़े डिनर पे जो इकट्ठी होती थी थैंक्स गिविंग डे पे. कोई डे होता होगा, ठीक है. नेक्स्ट, ट्रेडिशनली द ब्राइड वियर्स व्हाइट एट वेडिंग्स इन मेनी वेस्टर्न कल्चर्स. दैट मीन्स पहले जो है ट्रेडिशनली, दैट मीन्स रीति रिवाज के हिसाब से आप समझ लीजिए, पहले के हिसाब से या रीति रिवाज के हिसाब से जो ब्राइड है वो वियर करती है. वियर्स यानी अभी भी करती है, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. दैट मीन्स अभी भी करती है, यानी ट्रेडिशंस के हिसाब से करती है व्हाइट ड्रेस वियर, ठीक है. नेक्स्ट, ट्रेडिशनली द फेस्टिवल इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ परेड्स एंड परफॉर्मेंसेस. यानी कि पहले से इसमें क्या है कि क्या चला आ रहा है? परेड्स एंड परफॉर्मेंसेस. इसी तरीके से नेक्स्ट भी है. ट्रेडिशनली आर्टिसंस इन द रीजन हैव यूज्ड लोकल मटेरियल्स टू क्राफ्ट द प्रोडक्ट्स. ठीक है, आर्टिसंस क्या होते हैं? जो आर्ट करते हैं. तो कहते हैं उन्होंने क्या करा? लोकल मटेरियल को ही उठा के क्या करा? अपने प्रोडक्ट्स को क्राफ्ट यानी कि मैनेज करा, बनाया बढ़िया तरीके से. So the next one is recently. Okay, so let's see the usage. इसको कैसे हम use करेंगे? So the example is recently, यानी कि अभी अभी the company launched a new product. Company ने एक नया product launch करा है that has been receiving positive reviews. ठीक है, जिसको क्या मिल रहे हैं? Positive reviews मिल रहे हैं. Next, she recently moved to a new apartment in the city center. ठीक है, उन्होंने recently move करा है किसमें? न्यू अपार्टमेंट सिटी सेंटर में, ठीक है. नेक्स्ट, रिसेंटली वी डिस्कवर्ड अ न्यू हाइकिंग ट्रेल. ठीक है, यानी कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए या फिर कोई नेचुरल जगह पे होती है ट्रेल दैट ऑफर स्टनिंग व्यूज ऑफ द वैली. स्टनिंग मतलब बहुत बढ़िया व्यूज ऑफर करती है. नेक्स्ट, द टीम रिसेंटली कंप्लीटेड अ मेजर प्रोजेक्ट अहेड ऑफ द टाइमलाइन. अहेड ऑफ क्या होता है? पहले ही, है ना. तो जो टीम है उसने अभी अभी क्या करा है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है टाइमलाइन से पहले ही. नेक्स्ट वन,
recently he started taking evening classes to learn a new language। तो उसने क्या करा अभी अभी न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए क्लासेस जो है इवनिंग में लेनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंड व्हाट अ वर्ड इज दिस इज इन अर्लियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज सेइंग इन अर्लियर डिस्कशंस वी अग्रीड ऑन द प्रोजेक्ट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि पहले की डिस्कशंस में हम क्या अग्री कर गए थे प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स पे, जो मेन उसके मुद्दे हैं। ठीक है, नेक्स्ट the artist's style in earlier works is quite different from her recent pieces। That means उसका जो आर्टिस्ट का स्टाइल है पुराने वाले काम में वो बहुत फर्क है उसका, बहुत डिफरेंट है अभी वाले में से, रीसेंट यानी कि अभी वाला। ठीक है, नेक्स्ट इन अर्लियर, हम जैसे इन अर्लियर टाइम्स कहते हैं बीते समय के लिए है ना, वैसे ही इन अर्लियर वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दिस फीचर वाज नॉट इंक्लूडेड। यानी कि पुराने वर्जन्स जो थे सॉफ्टवेयर में उसमें ये वाला फीचर इंक्लूडेड नहीं था। नेक्स्ट में मूव करते हैं। इन अर्लियर चैप्टर्स ऑफ द बुक, यानी कि बुक के जो पुराने चैप्टर्स हैं पहले वाले, द ऑथर इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, पहले जो है पहले पहले वाले इनिशियल चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस करता है ऑथर मेन कैरेक्टर्स को। दिस वन लास्ट द कंपनी फेस सेवरल चैलेंजेस इन अर्लियर फेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। यानी कि शुरुआती कुछ समय में उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक है, तो इन अर्लियर का मतलब क्या हुआ, या तो बीता हुआ समय या फिर शुरुआती फेज। ठीक है, इन अर्लियर यानी कि पहले पहले। दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ ही वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट एंड लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। All right, so now we are going to start with the connectors that are going to help us for what? To show contrast. ठीक है, opposite दिखाने के लिए. So let's give it a look. So what is the list of linking words? देखते हैं जी। First is although, then even though, that means क्या मतलब होता है दोनों का, चाहे। Then despite मतलब बावजूद। Nonetheless, that means जैसे हम कहते हैं कि contrastingly इस तरीके से opposite side पे। In spite of का मतलब भी होता है बावजूद। Yet यानी कि अभी तक। However हालांकि। Nevertheless क्या हुआ, जैसे opposite के यूज करते हैं। While, whereas क्या मतलब हुआ, whereas का हालांकि। ठीक है, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस क्या होता है जी, इसकी बिना परवाह किए। नेक्स्ट इज नॉटविथस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि ये भी क्या हुआ, ऑन द ऑपोजिट साइड। तो अभी जो है वन बाय वन इनको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑल्दो। ठीक है, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, चाहे। तो समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। व्हाट दे आर सेइंग इज ऑल्दो इट वाज रेनिंग हैवीली, यानी कि चाहे बहुत तेज बारिश हो रही थी, दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द आउटडोर इवेंट। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि बाहर के इवेंट के साथ वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वन, Although she was tired, चाहे वो थकी हुई थी, she stayed up late to finish the report, यानी कि वो देर तक जागी रही रिपोर्ट को फिनिश करने के लिए। Next one, although the project faced several obstacles, obstacles का मतलब क्या होता है, रुकावटें। ठीक है, यानी कि चाहे प्रोजेक्ट में जो है बहुत सारी रुकावटें आई, the team managed to complete it on time, टीम ने क्या मैनेज कर लिया, उसको टाइम पे कंप्लीट करना। Next one, although the new policy has received mixed reviews, mixed मतलब positive भी है और negative भी है, it has been implemented across the departments, implemented मतलब लागू, यानी कि कुछ लोगों के positive reviews है, कुछ लोगों के negative reviews है, फिर भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, next, although he missed the deadline, deadline मतलब जिस समय पे काम पूरा करके देना था, he still submitted a high quality piece of work, that means उसने बहुत बढ़िया क्वालिटी का अपना काम सबमिट कर दिया है। अब आपने ध्यान दिया होगा जहां भी हमने although लगाया है, वन सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद क्या यूज करा है हमने, कॉमा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दिस इज यूजिंग इवन दो। ये भी सेम ही चीज है, तो समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। इवन दो इट वाज लेट, चाहे ये लेट हो गया था, शी डिसाइडेड टू फिनिश हर वर्क बिफोर गोइंग टू बेड। उसने क्या डिसाइड करा कि सोने से पहले वो अपना काम खत्म करके ही सोएगी। नेक्स्ट वन, इवन दो द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड स्नो, यानी कि वेदर फोरकास्ट में क्या आ रहा था, क्या भविष्यवाणी थी वेदर में कि बार स्नो होगी। ठीक है, द रोड्स रिमेन्ड क्लियर, रोड जो है वो तो क्लियर ही रही। नेक्स्ट, इवन तो ही वॉज फीलिंग अनवेल, चाहे वो सही फील वेल फील यानी कि ठीक फील नहीं कर रहा था, ही अटेंडेड द मीटिंग टू सपोर्ट हिज टीम, फिर भी उसने मीटिंग अटेंड करी ताकि वो अपनी टीम को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट वन, इवन दो द रेस्टोरेंट वॉज बिजी, चाहे रेस्टोरेंट बिजी था, द सर्विस वॉज प्रॉम्प्ट एंड फ्रेंडली, प्रॉम्प्ट यानी कि क्विक थी एंड फ्रेंडली थी।
नेक्स्ट वन, इवन दो शी हैड लिटिल एक्सपीरियंस, चाहे उसके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस था, शी क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू रूल। अडेप्टेड मतलब एडजस्ट कर लेना, फटाफट से ढल जाना उस हिसाब से, ठीक है। तो इवन दो भी कैसे यूज होता है, देखिए ऑल दो के तरीके से ही यूज होता है। तो हमें इसके बाद भी क्या करना है, जब आप नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, वी नीड टू यूज कॉमास आफ्टर दिस, ठीक है। So, all right. The next one is despite her initial reservations, यानी कि अपने initial reservations के बावजूद she agreed to join the team for the new venture. ठीक है, उसने फिर भी new team को join करने के लिए मान लिया new venture के लिए, right? Next one, despite the budget constraints, यानी कि financial problems होने के बावजूद the company successfully launched the new product. ठीक है, कंपनी ने फिर भी जो है अपना न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो क्या मतलब था डिस्पाइट का, बावजूद। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, एंड व्हाट इट इज, नॉनदलेस, ठीक है। एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। द फर्स्ट वन एग्जांपल इज द टास्क वाज चैलेंजिंग एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी कि टास्क जो है वो चैलेंजिंग यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट यानी कि कोशिश लगने वाली थी। नॉनदलेस दे कंप्लीटेड इट ऑन द टाइम, ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं, या ऑन द अदर हैंड कह सकते हैं, या ओपोजिटली, ठीक है। नेक्स्ट इज शी वाज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, यानी कि वो दिन में पूरा दिन काम करने के बाद बहुत थकी हुई थी। नॉनदलेस शी अटेंडेड द इवनिंग इवेंट, फिर भी उसने इवनिंग का इवेंट अटेंड करा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट फेस्ड सेवरल सेटबैक्स, यानी कि उसमें बहुत सारी कमियां थी, नॉनदलेस फिर भी इट वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया था। नेक्स्ट इज the instructors were unclear, the instructions were unclear, यानी कि instructions जो थी वो clear नहीं थी। nonetheless फिर भी he managed to figure out the solution, उसने फिर भी solution figure out कर लिया। next one, the weather was unfavorable for the outdoor activity, ठीक है। weather जो है वो unfavorable था, यानी कि सही नहीं था outdoor activity के लिए। nonetheless फिर भी they decided to proceed with their plans, ठीक है। तो nonetheless का मतलब क्या हुआ, ऑन द ऑपोजिट हैंड, ऑन द अदर हैंड, या फिर भी हम कह सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इट इज। सो दिस इज इन स्पाइट ऑफ, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है, बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, याद रखना है, डिस्पाइट यूज होता है, यहाँ पे क्या यूज होगा, इन स्पाइट ऑफ, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। दे आर सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक जैम, यानी कि ट्रैफिक जैम के बावजूद शी अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, वो मीटिंग में टाइम पे पहुंच गई। नेक्स्ट वन, इन स्पाइट ऑफ हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दैट मीन्स उसको एक्सपीरियंस की कमी थी, कम था, ही मैनेज टू एक्सेल इन द न्यू रोल, फिर भी उसने नए रोल में मैनेज कर लिया। नेक्स्ट वन, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर, ठीक है, कोल्ड वेदर के बावजूद द आउटडोर इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस, बाहर का इवेंट बहुत बड़ी सक्सेस था, ठीक है। ऑलरेडी किए हुए सेंटेंसेस है, वी आर जस्ट फिलिंग द ऑल्टरनेटिव्स विद इन दैट, राइट। सो नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली ऑन द प्रोजेक्ट, दैट मींस दो पर्संस में डिफरेंसेस यानी कि थोड़ा फर्क था, अच्छे से वो फेमिलियराइज नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम करा प्रोजेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक के बावजूद शी रिमेन कॉन्फिडेंट इन हर एबिलिटीज, वो अपनी योग्यता को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रही। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब हुआ, बावजूद, ठीक है। सो नेक्स्ट इज येट, let's understand with the help of examples. So the very first one is the movie was long and complex, मूवी जो है बहुत लॉन्ग, लंबी और गुंजलदार थी, उलझी हुई थी। Yet it kept the audience engaged throughout, फिर भी उसने ऑडियंस को अपने उसमें engaged रखा, ठीक है। नेक्स्ट, she studied diligently मतलब हार्ड वर्किंग तरीके से for the exam, yet she found some questions challenging, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी, फिर भी उसको कुछ क्वेश्चंस जो है कैसे लगे, चैलेंजिंग यानी कि डिफिकल्ट लगे। नेक्स्ट वन, द प्रोजेक्ट इज नॉट फिनिश, यानी कि प्रोजेक्ट जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। गेट द टीम, ठीक है, हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, दैट मीन्स फिर भी जो है टीम ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। नेक्स्ट, इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन हिज फील्ड, वो अपने फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। येट ही रिमेन्स ओपन टू लर्निंग न्यू टेक्निक्स, फिर भी जो है वो अपनी न्यू टेक्निक्स सीखने के लिए ओपन यानी कि हमेशा रेडी रहता है। नेक्स्ट, येट डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, फिर भी कहते डिफिकल्टीज के बावजूद भी, के बावजूद भी, फिर भी दे मैनेज टू अचीव देयर गोल्स, उन्होंने फिर भी अपने गोल्स को क्या कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। सो दिस इज यूजिंग हाउएवर, तो हाउएवर का क्या मतलब होता है, दिस मीन्स हालांकि, ठीक है। तो अभी सिचुएशंस की
से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रपोजल वाज वेल रिसीव्ड बाय द कमिटी। ठीक है, प्रपोजल को कमिटी ने तो बहुत अच्छे से रिसीव करा। हाउएवर दे रिक्वेस्टेड एडिशनल रिविजन्स, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक बार फिर से आप इसको रीचेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन, शी वाज ईगर टू ज्वाइन द टीम। वो टीम को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, ईगर था। ठीक है, however हालांकि her schedule conflicted with the meeting times, that means वो मैच नहीं कर रहा था, क्लैश कर रहा था schedule. नेक्स्ट वन, द न्यू सॉफ्टवेयर promises to be efficient, यानी कि नया सॉफ्टवेयर क्या प्रॉमिस करता है कि वो बहुत बढ़िया काम देगा। However हालांकि it requires a significant initial investment, लेकिन उसमें initial investment क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हाँ जी ये चीज तो है लेकिन ये चीज भी है हालांकि, राइट। नेक्स्ट, the restaurant is known for its excellent cuisine. However, the service can be slow during peak hours. That means चीजें तो बहुत बढ़िया है रेस्टोरेंट में, लेकिन सर्विस जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है पीक आवर्स, यानी कि सबसे ज्यादा बिजी आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द वेदर वाज सनी एंड प्लेजेंट, हाउएवर अ कोल्ड फ्रंट इज एक्सपेक्टेड लेटर इन द वीक। दैट मीन्स जो वेदर है वो सनी एंड प्लेजेंट है, लेकिन बाद में क्या हो सकता है, इस वीक के एंड में एक कोल्ड फ्रंट जो है एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो हालांकि का मतलब क्या हुआ, हाउ एवर। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज दिस, यूजिंग नेवरदलेस। तो नेवरदलेस एंड नॉनदलेस क्या है, दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स। सो लेट्स सी। द प्रोजेक्ट फेस न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थी, प्रॉब्लम्स थी, नेवरदलेस फिर भी द टीम कंप्लीटेड इट ऑन स्केड्यूल। दैट मींस सेम सेंटेंस है, जस्ट वन वर्ड जो है वो रिप्लेस्ड है। नेक्स्ट, शी वाज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग ट्रिप, नेवरदलेस शी अटेंडेड द इवेंट विद एंथुसियाज्म। दैट मींस वो लंबे ट्रिप के कारण बहुत थक चुकी थी, फिर भी उसने जो है इवेंट अटेंड करा बहुत एक्साइटमेंट के साथ। नेक्स्ट वन, द बुक वाज कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टू रीड। बुक जो है बहुत उलझी हुई, कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग, डिफिकल्ट थी पढ़ने के लिए, नेवरदलेस फिर भी इट वाज इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग, लेकिन बहुत बढ़िया थी। ठीक है, नेक्स्ट, नेवरदलेस ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। दैट मींस उसने रिस्क लेना स्टार्ट करा एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड हैवी रेन, मतलब उन्होंने हैवी रेन प्रिडिक्ट करी थी, नेवरदलेस फिर भी द आउटडोर वेडिंग वेंट अहेड एज प्लान्ड, यानी कि बाहर की जो वेडिंग प्लान थी वो वैसे की वैसे हुई। तो नेवरदलेस का मतलब भी क्या हुआ, फिर भी, या ऑन द ऑपोजिट साइड, या कंट्रास्टिंगली, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। Alright, so let's understand while। ठीक है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो होता है जबकि, सेकंड मीनिंग इज ड्यूरिंग, दैट मीन्स की दौरान। तो समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। सो द वेरी फर्स्ट वन इज while she was studying for her exams her friends were out enjoying the weekend। दैट मीन्स जिस दौरान वो क्या करी थी, पढ़ाई करी थी, उसके फ्रेंड्स जो है अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कैसे यूज हुआ, जैसे दौरान। ठीक है, नेक्स्ट वन, while the report was comprehensive it lacked some critical events। ठीक है, दैट मीन्स कि चाहे रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा डिटेल्ड थी, फिर भी जो है इसमें कुछ क्रिटिकल इवेंट्स मिसिंग थे। ठीक है, हालांकि के तौर पे यूज हुआ है, चाहे के तौर पे। नेक्स्ट, while the project has many challenges it also offers great opportunities for growth। ठीक है, हालांकि प्रोजेक्ट में बहुत challenges हैं, इसमें बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। नेक्स्ट, while he enjoys hiking in the mountains his partner prefers relaxing by the beach। That means चाहे जो है उसको हाइकिंग पसंद है, उसके पार्टनर को क्या पसंद है, बीच पे रिलैक्स करना। नेक्स्ट वन, while the concert tickets are sold out there may still be available through resellers। ठीक है, यानी कि चाहे बिक चुकी है लेकिन फिर भी रीसेलर्स के द्वारा जो है अवेलेबल हो सकती हैं। तो देखिए ये जो है however, while, whereas, these all are synonymous। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दिस इज वेयर एज, सेम मीनिंग हुआ हालांकि। ठीक है, कंपैरिजन के लिए या हम जैसे बट के पॉजिटिव सेंस के लिए यूज कर रहे थे, वी कैन से बिट पोलाइट सेंस के लिए, राइट। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज वेयर एज द नॉर्दर्न रीजन एक्सपीरियंसेस कोल्ड विंटर्स द साउथर्न रीजन एंजॉयज माइल्ड टेम्परेचर्स ईयर राउंड। दैट मीन्स की है, हालांकि एक में जो है नॉर्थ में क्या होता है, कोल्ड होता है, साउथ में क्या होता है, एक माइल्ड टेम्परेचर सा रहता है हर वक्त। नेक्स्ट, whereas she prefers working in a quiet environment her colleague thrives in a bustling office। ठीक है, दैट मीन्स उसको कैसा पसंद है, क्वाइट में, हालांकि उसके कलीग को कैसा पसंद है, बजलिंग ऑफिस में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। whereas the previous model was bulky and heavy the new design is sleek and lightweight। ठीक है, पुराना कैसा था, हैवी था और बहुत मोटा सा था, लेकिन नया वाला लाइट वेट एंड बहुत स्लीक सा है। नेक्स्ट वन, whereas the city offers numerous cultural attractions the countryside is known for its natural
ब्यूटी, ठीक है। हालांकि कहते हैं कि जो सिटी है उसमें बहुत सारी कल्चरल अट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन कंट्री साइड यानी कि जो विलेज का एरिया आ जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज वेयर एज सम पीपल फाइंड द प्रोसेस टेडियस, है ना। others appreciate the attention to detail it requires, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन बाकी लोगों को क्या लगता है कि बढ़िया चीज है अगर वो डिटेल्स जो है मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो वेयर एज का मीनिंग क्या हुआ, हालांकि। सो नेक्स्ट वन इज रिगार्डलेस। So let's understand it with the help of examples. So the very first one is regardless of the weather. यानी कि weather की परवाह करे बिना the event will take place as scheduled. That means जैसे decide हुआ था वैसे ही event होगा ही होगा, चाहे weather कैसा भी हो. Next, she was determined to finish the project on time regardless of the obstacles she faced. यानी कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद, दैट मीन्स हम कह दें कि बिना परवाह किए या इतनी उसके बावजूद भी है उसने प्रोजेक्ट को टाइम पे फिनिश करना डिटरमाइंड है वो, ठीक है। दृढ़ इरादा, डिटरमाइंड मतलब। नेक्स्ट, रिगार्डलेस ऑफ द कोस्ट they decided to invest in the new technology. That means cost मैटर नहीं करता, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का जो है सोच लिया। Next, he maintained a positive attitude regardless of the challenges during the transition. Transition यानी कि changes के दौरान उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी उसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। नेक्स्ट वन, रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, दैट मींस उनके डिफरेंसेस होने के बावजूद द टीम वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो रिगार्डलेस का मतलब क्या हुआ, हम जैसे कहते हैं कि ओके ये था लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? तो दिस इज notwithstanding, कैसे यूज होता है, nonetheless and nevertheless के तरीके से ही। लेट्स रीड द एग्जांपल्स। सो द वेरी फर्स्ट वन इज notwithstanding the heavy rain the outer concert continued as planned. That means same sentences है, क्या करा है, just notwithstanding लगा दिया, मतलब चाहे कुछ भी हो उसके बावजूद भी है इवेंट वैसे ही होगा जैसे प्लान करा गया था। नेक्स्ट वन, the company faced financial difficulties notwithstanding it managed to launch the new product on time. राइट, पहले भी करा था। जैसे चाहे कंपनी को जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, लेकिन उसने क्या मैनेज कर लिया, न्यू प्रोडक्ट को जो है टाइम पे ही लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट वन, notwithstanding her lack of formal training she quickly became an expert in the field. That means ट्रेनिंग की तो लैक थी, कमी थी, फिर भी वो क्या बन गई, एक्सपर्ट बन गई। नेक्स्ट, the proposal was rejected by some members. proposal को कुछ members ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। notwithstanding it was approved by the majority, लेकिन फिर भी ये जो है majority ने अप्रूव कर दिया। कुछ लोगों ने तो रिजेक्ट करा लेकिन ज्यादातर ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट, notwithstanding the initial setbacks, यानी कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आई, the project ultimately achieved its goals, यानी कि प्रोजेक्ट ने जो है अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर लिया। इसी के साथ जो है हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। Okay, so let's start with the next part of connectors. इसमें what we are going to learn is we are going to use and learn the connectors that are used for the additions part. All right, so let's give a look to the list. So here it is. What are the connectors? These can be furthermore, then in addition, not only but also, either or, besides, also, next, as well as, apart from. Either और का अगर हमें नेगेटिव करना हो तो दैट वुड बी नीदर और नो। जैसे हम कहते हैं ईदर और, या तो यू कैन टेक ईदर पेन और पेंसिल, ठीक है, या फिर यू कैन टेक नीदर पेन नॉर पेंसिल, यानी कि ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है, या फिर यू हैवंट डन, यू नीदर वेंट टू द मार्केट नोर यू डिड द वर्क, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। अभी जो है इसको एक एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। So the very first one is using furthermore, यानी कि इसके अलावा या इससे आगे। So let's see the examples. The very first one is the new policy will reduce cost, ठीक है, जो new policy है उसमें cost जो है reduce हो जाएगी। Furthermore, इसके साथ ही it will improve overall efficiency, यानी कि overall efficiency, काम करने की क्षमता भी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Next one, she has extensive experience in project management, ठीक है, उसका project management पे experience extensive यानी कि बहुत बढ़िया है। Furthermore, इसके साथ ही she has proven track record of successful implementations, यानी कि लागू भी कर लेती है वो चीजों को।
नेक्स्ट, द प्रोडक्ट इज अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल, यानी कि अफोर्डेबल भी है एंड ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलने वाला भी है। फर्दर मोर, इसके साथ ही इट कम्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, ठीक है, मतलब इसकी वारंटी भी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, द टीम मेट देयर डेडलाइंस कंसिस्टेंटली, यानी कि कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार बेसिस पे अपनी डेडलाइंस को मीट कर रहे थे। फर्दर मोर यानी कि इसके साथ ही क्या है, दे एक्सीडेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, दैट मीन्स जितना एक्सपेक्ट करा था, मान लीजिए उन्होंने सोचा था कि 90 रन बनाएंगे तो क्या एक्सीड कर दिया, दैट मीन्स 100 120 ज्यादा ही बना दिए जितना सोचा था। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रपोजल एड्रेसेस द इमीडिएट इश्यूज, राइट, यानी कि ये जो प्रपोजल है, ये जो ऑफर है, इससे जो अभी आने वाली प्रॉब्लम्स है वो इमीडिएटली हैंडल हो जाएंगी। फर्दरमोर इट आउटलाइंस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूवमेंट, और इससे हमें और क्या पता चल रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज भी हमें पता चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। सो दिस इज इन एडिशन। इन एडिशन का भी मतलब क्या होता है कि इससे जोड़कर या इसके साथ ही और क्या हो सकता है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, in addition to her role as a project manager, that means project manager का तो रोल है ही है, she also oversees the training of new staff, that means दो काम करती है। what is the work, project manager, in addition to that what is the next one, training of new staff, right। Let's move ahead towards the next example। The hotel offers free Wi-Fi. In addition, guests can enjoy complimentary breakfast each morning. That means क्या क्या मिल रहा है, एक तो free Wi-Fi मिल रहा है, in addition उसके साथ ही और क्या मिल रहा है, complimentary breakfast भी मिल रहा है। Next पे move करते हैं, in addition to the main course, the menu includes a variety of appetizers and desserts, right? That means main course के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, द कंपनी हैज इंप्रूव्ड इट्स कस्टमर सर्विस, कंपनी ने अपनी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर दिया, और उसके साथ क्या क्या किया है, इट हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन सपोर्ट पोर्टल, दैट मीन्स पुराने भी चीजों को ठीक कर दिया और न्यू पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इन एडिशन टू देयर एकेडमिक अचीवमेंट्स, एकेडमिक यानी कि पढ़ाई से जुड़ी हुई अचीवमेंट्स के साथ साथ द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, दैट मीन्स और क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करा, क्या क्या दिखाया, लीडरशिप स्किल्स भी दिखाई। ठीक है, यानी तो इन एडिशन का मतलब क्या हुआ, इसके साथ ही या इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट पे जो है हम मूव करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट, दिस इज यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि ये ही नहीं ये भी। अभी एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज थिंग दैट नॉट ओनली डिड शी फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल बट ऑल्सो शी मैनेज टू स्टे विद इन बजट, दैट मीन्स उसने सिर्फ प्रोजेक्ट जो है टाइम से पहले ही खत्म नहीं करा, बट और क्या करा उसने, बजट में भी रहने का मैनेज करा। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही नहीं करा ये भी करा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी विल नॉट ओनली स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस बट ऑल्सो एनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, दो काम है, क्या क्या, एक तो ऑपरेशंस, एक सेकंड क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, सो दे आर सेइंग नॉट ओनली इज द न्यू सॉफ्टवेयर मोर एफिशिएंट बट ऑल्सो इट ऑफर्स बेटर यूजर सपोर्ट। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट ही नहीं है बट ये बेटर यूजर सपोर्ट भी जो है उसको ऑफर करता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नॉट ओनली डिड दे रेनोवेट द बिल्डिंग, दैट मीन्स उन्होंने बिल्डिंग को सिर्फ रेनोवेट ही नहीं करा बट ऑल्सो दे इम्प्रूव द लैंडस्केपिंग अराउंड इट, दैट मीन्स आसपास को भी इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दिस इज द टीम डेमोन्स्ट्रेटेड नॉट ओनली क्रिएटिविटी इन देयर सॉल्यूशंस, दैट मीन्स टीम ने डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाया, क्या दिखाया, क्रिएटिविटी, सिर्फ सॉल्यूशंस में ही नहीं दिखाई बट ऑल्सो एक्सेप्शनल टीम वर्क थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, एक्सेप्शनल टीम वर्क भी जो है हमें दिखाया। ठीक है जी, नेक्स्ट पे जो है मूव करते हैं, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या हुआ, सिर्फ यही नहीं ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, सो व्हाट इट इज यूजिंग ईदर और, दैट मीन्स या तो ये या तो वो। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल, देखिए अगर नेगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में होगा तो ईदर और, नेगेटिव में आ गया तो नीदर नॉर, सिंपल। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल इज, यू कैन ईदर चूज द चॉकलेट केक और द फ्रूट टार्ट फॉर द डेजर्ट, दैट मीन्स या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज कर लो। नेक्स्ट, either we can finish the project by Friday or we need to request an extension, that means या तो हम फ्राइडे तक कर ले या फिर हमें एक्सटेंशन मांगनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि कुछ और समय मांगना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज, शी विल ईदर अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन पर्सन और ज्वाइन रिमोटली वाया वीडियो कॉल, दैट मीन्स या तो वो कॉन्फ्रेंस इन पर्सन यानी पर्सनली अटेंड करेगी या फिर और क्या कर सकती है, रिमोटली यानी कि घर बैठ के जो है वीडियो कॉल पे अटेंड कर सकती है। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, ईदर यू नीड टू सबमिट द रिपोर्ट टुडे, या तो आपको रिपोर्ट जो है वो आज ही सबमिट करनी पड़ेगी और फेस अ डिले इन द अप्रूवल प्रोसेस, या फिर आपको अप्रूवल प्रोसेस में डिले फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस, वी कैन ईदर गो टू द बीच दिस वीकेंड और प्लान अ हाइक इन द माउंटेन्स, या तो माउंटेन्स में चली जाइए या फिर बीच पे चले जाइए। तो ईदर और का मतलब क्या हुआ, या तो ये या तो ये।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सो दिस इज बिसाइड्स. लेट्स अंडरस्टैंड. सो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इसके अलावा. सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल is what it is saying. Besides the new software के अलावा the company also upgraded its hardware. कंपनी ने अपना हार्डवेयर भी क्या कर लिया? अपग्रेड कर लिया. नेक्स्ट वन. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गोइंग टू द मूवी. मैं मूवी में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ. बिसाइड्स आई हैव अदर प्लान्स फॉर द इवनिंग. यानी कि इसके अलावा मेरे और प्लान्स भी हैं. नेक्स्ट, besides offering a great view, the restaurant has excellent service. That means ग्रेट व्यू देने के साथ साथ रेस्टोरेंट की सर्विस भी क्या है? बहुत एक्सीलेंट है. नेक्स्ट, शी हैज अ फुल स्केड्यूल दिस वीक. उसमें बहुत टाइट स्केड्यूल है इस वीक में. बिसाइड्स शी नीड्स टू प्रिपेयर फॉर एन अपकमिंग प्रेजेंटेशन. यानी इसके अलावा उसको अपनी आने वाली अपकमिंग यानी कि आने वाली प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट वन. Besides the financial benefits, यानी कि financial benefits के अलावा working from home offers more flexibility. That means benefits तो मिलेंगे ही मिलेंगे financial, और flexibility भी जो है हमें मिल जाती है, right? So besides का मतलब क्या हुआ? इसके अलावा. Let's move ahead towards the next part. And what is this? This is also. तो also का meaning क्या होता है जी? Also means भी. ठीक है, so let's understand it with the help of examples. So first of all, what they are saying is that she's an excellent cook and also a talented musician. That means excellent cook भी है और क्या है? Talented musician भी है. Second, the new smartphones is not only sleek but also highly functional. ठीक है, यानी कि सिर्फ sleek नहीं है और क्या है? Highly functional भी है. Next, we need to finish the report by Friday. Also, we should prepare for the upcoming presentation. That means वो क्या कह रहे हैं कि हमें जो है रिपोर्ट फ्राइडे को फिनिश करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा? ऑल्सो वी शुड प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग प्रेजेंटेशन. दैट मीन्स आने वाली प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. He visited Paris last summer and also explored the nearby countryside. यानी कि उसने पेरिस विजिट करा लास्ट समर में, और क्या करा? और क्या एक्सप्लोर करा? आसपास वाला कंट्री साइड. दैट मीन्स रूरल एरिया एक्सप्लोर करा. नेक्स्ट वन. The last one, they are saying the company offers competitive salaries. कंपनी क्या ऑफर करती है? Competitive salaries ऑफर करती है. And also provides comprehensive health benefits. And health benefits भी बहुत डिटेल्स वो जो है प्रोवाइड करती है. ठीक है जी. तो ऑल्सो का मतलब क्या हुआ? भी. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. एंड द वर्ड इज नेक्स्ट. यूजिंग नेक्स्ट. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट. मतलब हो गया इसके बाद, है ना? तो वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट ऑन मंडे एंड नेक्स्ट वी विल स्केड्यूल अ टीम मीटिंग. यानी कि पहले हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्टली हम क्या करेंगे? मीटिंग, टीम मीटिंग करेंगे. नेक्स्ट, शी फिनिश्ड हर करंट बुक. उसने अपनी अभी वाली बुक खत्म कर दी एंड इज डिसाइडिंग व्हिच वन टू रीड नेक्स्ट. और डिसाइड करिए कि आगे क्या करना है. थर्ड वन, द कॉन्सर्ट वॉज अमेजिंग. दैट मीन्स लाइव म्यूजिक सेशन जो था वो बहुत अमेजिंग था. नेक्स्ट, वी प्लान टू अटेंड अ थिएटर परफॉर्मेंस. दैट मीन्स वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं? परफॉर्मेंस अटेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं. फोर्थ वन, द कंपनी विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स. कंपनी जो है किस पे फोकस करेगी? न्यू मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए, विद द नेक्स्ट टारगेट बीइंग एशिया. ठीक है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? एशिया में एक्सपैंड होना. नेक्स्ट वन, लास्ट वन. आफ्टर द एपेटाइजर द शेफ्स विल सर्व द मेन कोर्स नेक्स्ट. ठीक है, एपेटाइजर के बाद क्या करेगा शेफ? मेन कोर्स सर्व करेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? यानी इसके बाद. अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? दिस इज एज वेल एज. ऑल्सो के तरीके से यूज होता है, यानी कि भी. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. The very first example is she is responsible for managing the marketing budget as well as overseeing the team's daily operations. देखिए, जैसे and यूज करते हैं ना, वैसे यूज करते हैं. That means वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक तो मार्केटिंग बजट को मैनेज करने के लिए, और उसके साथ ही और क्या? टीम के डेली ऑपरेशंस को भी ओवरसी यानी कि उसका ध्यान रखने के लिए. नेक्स्ट वन. The conference will cover digital marketing strategies as well as emerging technologies. यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या कवर करेगी? एक तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और क्या करेगी? emerging technologies को भी कवर करेगी. The next one is the new policy benefits employees as well as improving ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस. ठीक है, जो न्यू पॉलिसी है वो क्या कर रही है? एम्प्लॉयज को तो बेनिफिट कर ही रही है, एंड ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को भी बेनिफिट कर रही है. नेक्स्ट वन. he excels in mathematics as well as in physics. That means दोनों कर सकता है, making him a strong candidate for the engineering program. That means जिसकी वजह से वो क्या बन रहा है? इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. the hotel offers a spa and gym as well as a beautiful view of the ocean. That means ये भी कर रहा है and ये भी कर रहा है. So as well as का मतलब क्या हुआ? also के या फिर and के तरीके से यूज होता है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. what is the next one? this is apart from.
So let's read. The very first example is apart from का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, ठीक है. So what they are saying is apart from the initial setup fee there are no additional charges for using the service. That means उसके अलावा, initial fee के अलावा और कोई भी charges नहीं है. Next one, apart from his work as a software engineer, that means अपने काम, उसका क्या काम है, software engineer, उसके अलावा he is also an avid photographer, ठीक है, वो eager यानी कि एक जिज्ञासु photographer भी है. Third one, apart from the occasional rain, that means कभी कभी rain हो जाती है, the weather has been perfect for the entire week. That means कभी कभी बारिश के अलावा सारे week के लिए जो weather है बहुत perfect है. Next one, apart from studying यानी पढ़ने के अलावा she volunteers at a local charity, वहां पे free of cost कुछ services भी देती है. Next one, apart from the main course यानी कि main course के अलावा the restaurant also offers a wide range of desserts, ठीक है, desserts भी offer करता है, ठीक है. तो इसी के साथ जो है हमारे एडिशन वाले जो कनेक्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. All right, so let's continue with the next part, and now we are going to cover the connectors that are used to show the examples, right? So without any halt, let's check the list कि इसमें कौन-कौन से connectors included हैं, right? So first of all, we have for example, then for instance, then to illustrate, such as an example and as an illustration. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कनेक्टर्स होते हैं जैसे अ केस इन पॉइंट, ठीक है, और एक और क्या होता है टू एपिटोमाइज या फिर एज एन एपिटोम. तो देखिए ये दोनों कनेक्टर्स कब यूज होते हैं एंड व्हाई डिडंट वी मेंशन दोस ऑल ओवर हियर. द रीजन इज कि जो है टू एपिटोमाइज एंड एज एन एपिटोम वो तब यूज होते हैं जब हम एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम लेकर उसकी एग्जांपल देते हैं. जैसे मोहन who is a bureaucrat is very successful in his life, right? So what I want to say कि नेम लेके स्पेसिफिकली एग्जांपल दिया है, तो इसमें इसलिए ऐड ऑन नहीं करे क्योंकि बाकी सारी जो लिस्ट है वो जनरल है. तो अगर हम इसमें ऐड ऑन करते तो शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी दैट वेदर टू यूज दोज ऑल एज जनरल और नॉट. तो अगर आप उसको जनरल में यूज करते तो वो गलत हो जाता. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट सेपरेटली टू यू, right? So now let's understand these all with the help of example. Let's give it a look. So the very first one is for example. तो इसकी first example क्या है देखिए. For example, if you are looking to improve your fitness, अगर आप अपनी fitness को improve करने के लिए देख रहे हैं, you might try activities like running, swimming और cycling. ठीक है, आप कैसी activities try कर सकते हैं, running, swimming और cycling कर सकते हैं. Next one, many fruits are high in vitamin C. ठीक है, बहुत सारे fruits जो है high होते हैं vitamin C में. For example, oranges and strawberries are excellent resources. यानी कि oranges and strawberries क्या है, excellent resources हैं. Next one, there are several ways to reduce your carbon footprint. ठीक है, तो इसमें कहते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं आपके कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने का. For example, जैसे कि using energy efficient appliances can make a significant difference. ठीक है, यानी कि ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. Next example, for example, the company offers various employee benefits such as health insurance and paid time off. ठीक है, कि कंपनी जो है बहुत सारे फायदे दे रही है आपको. एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है और क्या दे रही है, पेड टाइम ऑफ यानी कि छुट्टियां, वो भी पेड. नेक्स्ट वन, डिफरेंट कंट्रीज हैव यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस. बहुत सारी कंट्रीज के पास क्या है, यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, जापान इज नोन फॉर इट्स टी सेरेमनीज. ठीक है, उसमें चाय की सेरेमनीज हैं. वाइल इटली इज फेमस फॉर इट्स पास्ता डिशेस. ठीक है, तो इस इटली क्यों फेमस, अपनी पास्ता की डिशेस के लिए. ठीक है, इसके साथ ही वी हैव कवर्ड फॉर एग्जाम्पल. लेट्स मूव अहेड. ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे फॉर इंस्टेंस. देखिए है तो सेम ही है, ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे यूज हो सकते हैं यानी कि जिस जिस सेंटेंस में आपने जहां जहां पे फॉर एग्जांपल लिखा है यू कैन सिंपली रिप्लेस इट विद फॉर इंस्टेंस. ठीक है, फिर भी हम एक दो एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं. सो वेरी फर्स्ट वन इज for instance, you can use renewable energy sources like solar or wind power to reduce your carbon footprint. ठीक है, तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, सोलर और विंड पावर. नेक्स्ट वन, देयर आर सेवरल वेज टू इंप्रूव योर डाइट. ठीक है, अपनी डाइट को इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि incorporating more fruits and vegetables can have significant health benefits. That means अगर आप अपनी डाइट में क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उनको इंक्लूड करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. राइट, इसी तरीके से बाकी तीन एग्जांपल्स भी हैं लाइकवाइज. ठीक है, यू कैन रीड देम एज वेल. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द
नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज दिस? टू इलस्ट्रेट। तो सेम ही है बिल्कुल, ठीक है, रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करा जा सकता है, बट लेट्स रीड एग्जांपल्स। टू इलस्ट्रेट दैट मींस एग्जांपल के तौर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे इकोनॉमिक्स में, है ना? तो कंसीडर हाउ द प्राइस ऑफ कॉन्सर्ट टिकट्स इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स डिक्रीजेस। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, वैसे रिलेटेड तो नहीं है बट जनरली हम डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई एंड डिमांड का क्या होता है? जब सप्लाई कम होती है, यानी कि जब कहते हैं डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है? सप्लाई एनी हाउ कम हो जाती है, ठीक है। उल्टा रिलेशन होता है, मतलब एक चीज ज्यादा एक चीज कम, तो इसी तरीके से प्राइस में भी होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कॉन्सर्ट टिकट्स की जो है नंबर ऑफ सीट्स कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा मतलब रिलेशन होता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट वन, the teacher used a variety of examples to illustrate the principles of algebra in a more understandable way. That means teacher ने बहुत सारे examples को use करा to illustrate. That means क्या दिखाने के लिए? Illustrate का meaning और भी क्या होता है? दिखाने के लिए, right? क्या दिखाने के लिए? कि जो principle of algebra है उनको understandable way में express करने के लिए, right? Likewise हमारी ये भी examples हैं. You can give a look to these all too. सो ऑल राइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज सच एज, राइट। सो कैसे यूज करेंगे? यूजेजेस लाइकवाइज, ठीक है। तो देखिए वेरी फर्स्ट वन एग्जांपल इज द कंपनी ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स। कंपनी जो है बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, ठीक है। कैसे कैसे बेनिफिट्स देती है? सच एज हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लान्स, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट प्लान्स। इसको भी आप एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं बाकी सारे स्टार्टर्स की तरह, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टू इलस्ट्रेट, टू एग्जाम्पलीफाई, राइट। Next, many animals such as dolphins and whales use echolocation to navigate and find food. ठीक है, यानी कि food find करने के लिए and navigate करने के लिए वो इसको use करते हैं. Next is she enjoys outdoor activities such as hiking, biking and camping. वो बाहर की activities enjoy करती है such as जैसे कि कौन कौन सी? Hiking, biking and camping. Next one, the museum features exhibits यानी कि दिखाता है such as ancient artifacts and modern art pieces. क्या क्या दिखाता है वो हमने बता दिया. Next one, last one. The recipe calls for several ingredients such as garlic, onions, and bell peppers, right? So this is what we have written. तो ये सारे एग्जांपल्स किसकी थी? सच एज, इसका मतलब भी क्या होता है? जैसे कि। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज दिस? एज एन एग्जांपल। सो लेट्स रीड द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस. As an example, the teacher pointed out how the Pythagorean theorem is applied in architectural design. ठीक है, टीचर ने कैसे एक्सप्लेन करा कि आर्किटेक्चरल डिजाइन में जो है पाइथागोरियन थ्योरम जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वन, एज एन एग्जाम्पल कंसीडर हाउ रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस वेस्ट इन लैंडफिल्स। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल हमने क्या समझा कि रिसाइकलिंग जो है कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकती है लैंडफिल्स में। Next one, as an example, she cited the success of companies like Apple and Google in adopting innovative business practices. ठीक है, यानी कि उसने क्या करा? अपनी सक्सेस को साइट करा कंपनीज के लिए, ठीक है, जैसे कि this and this, right? Next one, as an example, you might look at how other countries have handled similar environmental issues. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि बाकी की कंट्रीज ने इस तरीके के इन्वायरमेंटल इश्यूज को कैसे हैंडल करा है, ठीक है, सिमिलर को। नेक्स्ट वन, एज एन एग्जाम्पल ही डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब शो करना, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बोर्ड। ठीक है, उसने दिखाया कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोर्ड पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज दिस वन? दिस इज एज एन इलस्ट्रेशन, राइट। तो सेम अगर आप टू एग्जाम्पलीफाई यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। सो एज एन इलस्ट्रेशन द प्रोफेसर शोड अ डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। ठीक है, तो प्रोफेसर ने क्या करा? एक डायग्राम को दिखाया वाटर साइकिल की, ताकि वो कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट वन, एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क द प्रोजेक्ट टीम प्रेजेंटेड अ केस स्टडी ऑफ द रीसेंट सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे किसकी एग्जाम्पल? इफेक्टिव टीम वर्क के एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोजेक्ट टीम है उसने क्या प्रेजेंट करा? एक केस स्टडी को प्रेजेंट करा ऑफ द रीसेंट सक्सेसफुल कोलैबोरेशन की। ठीक है, लाइकवाइज रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स भी हैं दैट यू कैन गिव अ लुक टू। ठीक है, देन आई एम अगेन सजेस्टिंग यू कि सभी कनेक्टर्स पे प्लीज मेक श्योर टू मेक sentences on your own as well so that these can be there in your mind. So thank you so much for attending the session. I hope it was useful for you.